Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. Now Shazia is more settled. This is the second time Rabia has started this recording. मैं थोड़ी सी जरा out of place हुई भी थी उस वक्त. I see there is a cushion. There is a cushion now which was not there before, and मुझे लग रहा है इसके ऊपर अपने comments रखे हैं. But yes, we were talking about Sania Mirza and Shoaib Malik, and I think मजे का उनका एक talk show होने वाला है. They were trending yesterday. मैं कह रही थी कि जरा मजे का होगा शायद. उर्दू फ्लिक्स is coming up with it, and Rabia, you were saying कि शायद limited reach होगी उनकी. Definitely limited reach है. Maybe सानिया और शोएब को देखने के लिए लोग हों. बस I don't know if I should be saying this. I'm just concerned कि हर कोई हर कुछ जो करने लगता है. There has to be a criteria for that. There should be some thought process going behind something. You know, अब हम maybe नया जमाना ऐसी है कि हर कोई हर कुछ करे. ये भी हो सकता है. So let's see क्या होता है. I'm not saying much. I think let's see. Yes, I agree with you कि काफी talk shows हो रहे हैं, but I think I like the fact that these two are coming together because they have a lot to offer as an influencer couple. आगे जाके उनका एक random talk show होगा जैसे सबके होते हैं, या will it give us something more is what I want to know. Yeah. अगर और कुछ नहीं है तो I will start with the comments. आपके हाथ में यूं फोन है और आप कह रही हैं कि I will start with the comments. तो शाजिया की मजाल है जो शाजिया मैं फोन रख के ऊपर देखूंगी और आपसे बात करूंगी. अगर आप कोई और टॉपिक पे बात करना चाह रही हैं आप अर्ज कीजिए. बिल्कुल नहीं, आप शुरू करिए. अभी हमारे काफी ड्रामे हैं आगे जिन पे हमें गुफ्तगू करनी है. कल हम ट्विटर स्पेस पे भी गए थे, हमने बड़े मजे की गुफ्तगू करी, हम कहाँ के सच्चे थे, तो वो आज कंटिन्यू हो गई था. चलिए. पहला कमेंट, हम कहाँ के सच्चे थे. आई एग्री विद एवरीथिंग यू आर सेइंग हियर. आई थिंक दैट मेनी पीपल are making too much of some kind of hidden love for Mehreen that Aswad is carrying around but is unable to show it. It's just nonsense. अच्छा, उन्होंने basically मेरी बात को बोला it's just nonsense कि असवद को मेहरीन से मोहब्बत है. ये सही नहीं है. There is no indication of this from the adult Aswad. In fact, he is a domestic abuser who's being apologized for by a lot of people, which is deeply concerning for me. I agree that Mehreen is a really damaged human who has been beaten down repeatedly by those who should have loved her the most. She has had to try and fight for her very existence, which is exhausting and demoralizing. She's suffering from Stockholm syndrome, and this really should be addressed more directly, maybe through therapy. As you suggest, I absolutely do not want Mehreen and Aswad to end up together without some kind of therapy. If they do, then the drama is legitimizing codependent and toxic relationships. I think that the acting in this drama is first rate. The issue is in the adapted screenplay. They should have stayed true to the original text. आप कुछ कहना चाहेंगी? Is it लंबा comment है? So ये बार ये डिस्कस हुआ है. I'm not a therapist. I'm not going to go into Stockholm syndrome. और अभी क्योंकि comment आया है, मैंने पहले देखा था काफी सालों पहले. I haven't seen it. Do you have any idea? क्या चीज? Stockholm syndrome का? हाँ. Yeah. Okay, Stockholm syndrome जितना मुझे समझ आती है वो आपके जो किडनैपर या अब्यूजर होता है उससे you fall in love, you know. Yes. So I with huge apologies and maybe again I could be wrong और मेरी नॉलेज शायद देती हूँ, लेकिन जितनी मुझे समझ है मुझे नहीं लगता कि ये बात यहाँ जायज है, क्योंकि वो ऑलरेडी असवद से प्यार करती थी. वो असवद से शादी के बाद नहीं प्यार करने में आई, वो तो बचपन से असवद से प्यार करती है. Yes. और जो बचपन का असवद हमें दिखाया गया है वो कोई अब्यूजर या कोई नहीं था, बल्कि उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि मैं तो मर्द हूँ, मैं औरतों को कैसे मार सकता हूँ, यू नो. तो आई डोंट थिंक कि ये चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होती है. दूसरी बात उन्होंने बोली कि ही इज एन अब्यूजर एंड मेहरीन उसको बहुत से इश्यूज हैं, एंड ये इस पे तुम कुछ कहना चाहोगी? और ये बात भी उन्होंने कही कि उनको समझ नहीं आ रही है कि शी इज नॉट हैप्पी अबाउट she or he is not happy about the fact कि लोग क्यों असवद के बिहेवियर के लिए जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, और थेरेपी के बगैर जो कि हम लोग सब कह ही रहे हैं कि मेहरीन और असवद को नहीं साथ रहना चाहिए. So you want to say something about domestic abuse? Yeah, I want to say कि असवद is damaged goods. ठीक है, मेहरीन is also damaged, असवद is also damaged, और इसके बारे में कोई रिफ्यूट नहीं कर रहा ये बात, क्योंकि वो है. अब आगे जो थेरेपी की बात, हमने ऑलरेडी एज एन ऑडियंस अपना वर्डिक्ट दे दिया है.
इस तरफ या उस तरफ कि उन दोनों की कुछ साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम थेरेपी का इंतजार नहीं कर रहे, जो हमने बार बार कहा है कि नाउ इन दिस ड्रामा वी वांट टू सी थेरेपी, वी डोंट, हमें नाम का नहीं चाहिए, हमें देखना है कि क्या होता है। अभी उन्होंने एक सीन दिखाया था विच वी विल डिस्कस व्हेन वी डू हम कहाँ के सच्चे थे एंड वी विल टॉक अबाउट इट। क्या असफद को महरीन के साथ होना चाहिए, माफी मिलनी चाहिए, इनकी यही राय है कि नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं विदाउट थेरेपी, अगर थेरेपी without therapy, yeah, with therapy they might or might not, so we have to see. And I agree with her, without therapy he should not be let loose with Mehreen. I think we all agree. Okay, second comment है, I think अब ये सिंफियान के बारे में, I think ये मलिहा बात कर रही हैं, I think each girl represents all girls in Pakistan. I think we really should be above this now. They didn't show representation from Gilgit and Kashmir either. How come you didn't mention that? I'm sorry, not impressed with this logic. I'm Urdu speaking, by the way, so yeah. You want to say okay, something? इसके ऊपर मैं बहुत लंबी दास्तान कर सकती हूँ जो मुझे नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने मेजर शहर दिखाए हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची इज अ मेजर शहर, मैं इस हैदराबाद को भी शायद उसके अंदर काउंट करूंगी, बट डेफिनेटली ठीक है, आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। उर्दू स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग नहीं हो, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप जाके पढ़ेंगे, सिंध रेजिमेंट जो है पाकिस्तान आर्मी का, वो आई थिंक 1981 में फॉर्म हुआ था, उससे पहले कोई सिंध रेजिमेंट था ही नहीं। क्यों नहीं था, आई डोंट नो। और जब वो शुरू भी हुआ तो आई थिंक बलूचिस्तान के रेजिमेंट्स ने आके शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर सिंध का डाला। आपको और पता करना है तो आप जाके कोटा सिस्टम के बारे में मालूम करें, आप दो मिसाइल के बारे में मालूम करें, आप चेक करें सिविल सर्विसेज में क्या होता है, किस तरह किसी को 80% मार्क्स मिलते हैं, किसी को 50% मिलते हैं, लेकिन 50% वाला जो है उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है, 80% को नहीं एक्सेप्ट। आई एम गोइंग टू रेस्ट माई आर्ग्यूमेंट हियर। बाकी आई एम होपिंग कि जैसे ट्रैक था ड्रामे का, आगे हमें पता चले, जैसे यू वर सेइंग राबिया कि सज्जल शायद कराची से ही थी, एंड सो लेट्स जस्ट वेट फॉर द ड्रामा टू अनफोल्ड। ये मेरी इनिशियल व्यूज थे जो मैंने एयर करें। Cynthia Ahan, the main problem is direction. It was too dull and scenes were not placed well. The cinematography and colors were dull. Cynthia Ahan is not visually pleasing, just like how Parizad and Khuda Aur Mohabbat 3 were. You can just watch it for the story of the girls and nothing else. So every drama is different, right, Rabia? Every drama gives us a different mix. तो हम अगर हर ड्रामे में वही चीज ढूंढेंगे कि हम कैमरा एंगल्स ढूंढेंगे या हम स्प्लिट स्क्रीन ढूंढेंगे या हम फ्लैशबैक्स ढूंढेंगे, तो आई थिंक इट्स अनफेयर। वी हैव टू एंजॉय द ड्रामा इन द स्पिरिट of the entire production itself. And for me, Cynthia Ahan is dealing with 5 different stories of 5 different girls, और उन्होंने उसको चूज किया है कि वो इस तरह प्रेजेंट करे। जब आप राइटर्स भी पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ, कभी आप शेक्सपियर पढ़ते हैं, कभी आप टॉमस हार्डी पढ़ते हैं, कभी आप कोई बहुत ही फास्ट पेस्ड राइटर पढ़ेंगे which will not be slow. So I think we as an audience also have to get into the spirit of the drama. हाँ, फ्लॉज होते हैं, थोड़े इधर उधर नुक्स होते हैं, लेकिन in general I don't think it's fair to compare like this कि इसकी एडिटिंग ऐसी नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इस कमेंट से एग्री नहीं करती हूँ, बिकॉज मैंने सोचा जो इसमें 5 कहानियां और 5 कहानियों के डिफरेंट बैकग्राउंड्स है, तो जरूरी, तो जो एक जगह बहुत उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं, कहीं वो नहीं कर सकते क्योंकि आपने दिखाना है ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल शाइस्ता का ट्रैक आप ले लें, तो वो एक एक्चुअली जब शाइस्ता को शुरू में दिखा रहे हैं वो कर रही है, तो वो बहुत खूबसूरत सीन था, उसपे बड़ा प्यारा वो फोटोग्राफी थी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जो वो कर रही है तो उसमें थोड़ा सा वो भाई को पढ़ा रही है, बिल्कुल बेसिक चले जाते हैं। इसी तरह कुबरा का माजबीन का जो ट्रैक है उसमें भी मुझे लगा कि उन्होंने घर की जो लुक और वो सब कुछ बड़ी अच्छी दिखाई है, जब वो बेड पे सो रही होती है। सो आई डोंट थिंक सो। यस, जब आरजू का आता है यू फाइंड इट डल बिकॉज दिस इज व्हाट they're showing a gloomy, depressed feel. So I think it's not fair to say that खुदा और मोहब्बत और परीजाद, एक्चुअली परीजाद में भी इतने सीन तो मुझे नहीं ऐसे लगे, खुदा और मोहब्बत में आप कह सकते हैं। इनफैक्ट इसमें भी अगर आप देखें तो एक दो जो लाहौर का या उन्होंने बोला है, तो ऊपर के जो शॉट्स है पूरे वो शहर का दिखाया, दे आर वेरी प्रिटी शॉट्स। सो क्योंकि बहुत ज्यादा स्टोरी ऊपर नीचे हो रही है, तो शायद आपको इतनी ज्यादा वो हिट नहीं कर रही है और आप उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे भी कुछ शॉट्स और कुछ सीन्स बहुत खूबसूरत तरीके से फिल्म किए हुए हैं, यू नो। Yeah, that's all. I also have to say कि घर के अंदर डिपिक्शन बहुत अच्छा, बहुत माइक्रो डिटेल में गए हैं। अगर आपको उसका परिवेश का घर देखें जो बाहर से दीवार से उसके ऊपर जो बना हुआ था, there was something made, कुछ आर्ट वर्क हुआ था, और ये सारी चीजें इवन जो
शाइस्ता का घर है वो भी अंदर से they have all of them they have really tried to stay true to the housing inside, so I was appreciating that. Okay जी, coming to our drama review, किससे we have सिनफ़े आहन, दिले मोमिन, हम कहाँ के सच्चे थे, किस्सा मेहरबानों का, और आखिर कब तक, right? आखिर कब तक या किस्सा मेहरबानों का, बताइए आखिर कब तक. Okay, आखिर कब तक. अब I'm going to start with something not negative लेकिन थोड़ा सा critical. जो court scene था वो मेरे लिए पूरा fall flat हुआ है. I was looking forward कि कुछ अगर ठोस सबूत भी नहीं हो तो मतलब एक सही की आर्ग्यूमेंट तो होना. अब वो खड़ी हुई कह रहे हैं उनके लॉयर कि आपने तो ये बात छुपाई, आपने शादी कर दी उसकी, आपने धोखा दिया. उनकी जो वो है लॉयर वो ऑब्जेक्शन नहीं लगा रही कि भाई इसका केस से क्या ताल्लुक है. So she was made to feel bad और वो आर्ग्यूमेंट ही पता नहीं कहाँ जा रही थी. I don't know. Am I getting something wrong? Did I miss something? और शुरू में भी वो पेपर पकड़ के पढ़ी, अरे भाई लॉयर हो तो ओपनिंग आर्ग्यूमेंट तुम्हें इतना तो होना चाहिए कि तुम खुद से बोल सको. मे बी आई डोंट नो, आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच, बट हमने पहले भी एक दो केसेस में एक दो ड्रामों में देखा है वहाँ लॉयर्स नहीं पढ़ रहे होते. तो मुझे तो आई वाज पुट ऑफ बाय दैट होल थिंग, यू नो. अदरवाइज देयर वाज नथिंग मच इन द ड्रामा हैपनिंग. मुझे मतलब आई वॉज अगेन वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस एपिसोड. अब हम उस पॉइंट पे पहुंचे थे जहां हमें एक्शन देखना था, लेकिन वो एक्शन भी इतना ड्रैग करके दिखा रहे हैं. और अगर फजर वाकई एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर तो इस ड्रामे ने हैज कंप्लीटली लॉस्ट मी. आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट एनी मोर, बिकॉज वो जो होप थी, जो उम्मीद थी, वो आपने मार दी है. अब जफर के लिए आप केस लड़े नहीं करें. मुझे ऑनेस्टली आई एज अ व्यूअर यू हैव लॉस्ट मी. Yes, और वो जफर बीच में से बोलना शुरू हो गया कि वो तो पागल थी, आपने बताया नहीं उसके दौरे पर. अरे तो शादी से पहले ही तो तुमने उसको किया था हरास और रेप, शादी के बाद तो नहीं किया था. मतलब you can put 2 and 2 together. Why is he allowed to speak? उनको बंद कर दिया. Again, I don't know the rules, but ये क्यों हो रहा था समझ नहीं आ रहा. फिर बिसाम का जो ट्रैक था वो पूरी कहानी जरा डिस्कनेक्ट लग रही थी कि वहाँ क्या हो रहा है एकदम से. एंड इतना लो दिखाया ह्यूमन बीइंग्स को कि वो कह रहे थे कि फजर का केस जो है वो टर्न हो जाए ताकि ये हो जाए और फिर उनकी दोनों बेटियां नीचे जाए. इतना इविल दिखाया है. अगेन द मदर इन लॉ नहीं, बट हालांकि वो पहले उन्होंने दिखाया जब विसाम हॉस्पिटल में होता है तो दे आर रियली टच्ड, यू सो वी वर होपिंग. और इसकी जरूरत नहीं थी कोई ना. मतलब अगेन फिर लोग हमें बोलते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं, बट नेगेटिविटी एक जहां जरूरत है वहां हो ना. इसकी इस वक्त जरूरत नहीं है. आप एज अ व्यूअर समझेंगे उस पॉइंट पे पहुंचे हैं. हमने पूरा जर्नी फजर और नूर का देख लिया, कर लिया. अब आगे उनकी फाइट हमें देखनी थी. वी डोंट वांट टू सी बिसाम एंड वी डोंट वांट टू सी दादी एंड वी डोंट वांट टू सी सफिया का कुछ. वी वांट टू सी नूर, साइम, इंस्पेक्टर नासिर एंड फजर फाइटिंग द केस. क्योंकि आप हमें उस पॉइंट तक लेकर आए हैं. आपने ये 4 कैरेक्टर्स जिनसे you made us fall in love with them. You made us say कि oh wow, what have you done, what a great thing. And then आपने हमारे नीचे से जमीन खींच ली. आपने बोला बेटा जाओ भाई, फजर तो मर गई, आप जाओ. वो कोई बिसान के साथ ये हो रहा है और दादी ये कह रही है और इंस्पेक्टर नासिर भी कह रहे हैं अगर कोई गवाह मिल गया तो फिर शायद जफर बच जाए. So we kind of it was. जब आप कह रहे हैं कि फजर ने रिपोर्ट लिखवाई थी और FIR भी नहीं कटी है, आप उस पुलिस ऑफिसर को ढूंढ के लाए ना. आप उसको लेकर आए गवाही में. आप थेरेपिस्ट को लेकर आए जिससे फजर की बात हो रही थी, तो वहां कुछ थी. एंड राबी, यू नो व्हाट आई नोटिस कि एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली स्क्रिप्ट में यहाँ आके कैरेक्टर डेवलपमेंट रुक गया है. सिर्फ सफिया का डेवलपमेंट हुआ है और उनके हस्बैंड का इत्तिशाम का डेवलपमेंट हुआ है. बाकी तौकीर जो है, मदर इन लॉ जो है, उन सबका कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ. वहीं के वहीं खड़े हैं. रिग्रेशन हो गया है. इनफैक्ट उनका रिग्रेशन टाइम की अम्मा देखो. दूसरी बात ये, अब आप इंस्पेक्टर नासिर को इतना चालाक होता हो दिखा. अरे भाई आपको पता है वो लड़की एक और कोमा में, आप जाएं उस ट्यूशन सेंटर पे. मतलब आप इतनी तो माय प्रॉब्लम इज इतनी इंटेलिजेंटली अगर स्क्रिप्ट को डील किया गया तो आई एक्सपेक्ट द सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हियर आल्सो टू शो कि वो जाके किसी को ढूंढ रहा है, कुछ कर रहा है. सो आई एक्चुअली डू नॉट वांट टू से मच एनीथिंग मोर अबाउट आखिर कब तक. आई एम वेरी वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड. That's all. अच्छा, और देखो there were some clues. I mean, हमें कुछ unrevealed facts है. अगर उन्होंने फजर को supposing छुपाया भी है, because the lawyer told him कि आपको पता है कि आपकी नौकरी जा सकती है अगर आप ये करेंगे. अब भाई इसका क्या मतलब था? अगर आप अगले एपिसोड में रिवील करेंगे then this episode should have been strong enough for you.
for us to wait for the next reveal. नौकरी तो इसलिए जा सकती है ना बिकॉज वो उसने लॉयर को बहुत सी बातें बताई है ना जो उसको नहीं बतानी चाहिए. वो फजर के जिंदा होने की बात हो सकती है और फजर के ना जिंदा होने के अलावा बहुत सी पुलिस इंस्पेक्टर शुड नॉट हैव रिवील्ड टू द विक्टिम्स फैमिली, क्योंकि वो विक्टिम की फैमिली से अटैच है इसलिए उसको पता है, तो उसने वो लॉयर को बहुत सी बातें बताई होंगी जो अदरवाइज लॉयर विक्टिम की फैमिली को नहीं पता चलते, इसलिए वो भी कह रही है. Okay. Anyway, this episode again, I think failed. Both of us and a lot of viewers failed to keep going. Yeah. किस्सा मेहरबानों का वो भी एक सैड कहानी है. जहां मैं उम्मीद करती हूँ वो पिक करेगा, कुछ होगा, इट फॉल्स डाउन द सेम रोड एंड आई एम लाइक यार इस कहानी में पोटेंशियल है, इस कहानी के कैरेक्टर्स में पोटेंशियल है, द एक्टर्स आर डूइंग अ गुड जॉब, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट. तो क्यों हमें ये लूज कर देता है ड्रामा आफ्टर एवरी 4 or 5 एपिसोड्स, या कुछ अरसे बाद ये वाली एपिसोड ने लॉस्ट मी, यू नो. बिल्कुल, इट वेंट अराउंड इन सर्कल्स, देयर वाज नो पॉइंट, क्योंकि वो अभी घूम फिर के अगले एपिसोड में यही होगा कि वो डीएनए टेस्ट कराएंगे, उनको पता चल जाएगा कि वो ही हैं, और फिर वो इसी एपिसोड में आप कर दें कि वो फिर परी रूट के चली जाएंगी. और मुझे वो फनी लगा कि उसने कहा उनकी मदर इन लॉ ने कि वो एक रात में कैसे हो गया. That dialogue was so funny. I was like, what do you mean? वो कहती है एक रात में पता तुमने क्या कर दिया कि I'm like, किस किस्म का डायलॉग है यार ये, किस किस्म की बातें हैं, you know, it was just. And then he's telling Pari, he's saying नहीं मैं तो अपने वादे पे कायम हूँ. So part of him wants to make sure कि वो नहीं है उसका बच्चा, ताकि वो परी से कहे कि वो परी को उसने बोला परी को कि उसके बाद मैं अपने वादे पे कायम हूँ. वो जो हुआ वो हुआ. तो जब उसके बाद उसने माँ को भी ये बोला कि शुरू में जो हुआ वो हुआ, उसके बाद नहीं. तो this is what he said to माँ and you know परी को उसने ये बोला. It was a one time. उनकी भी मुझे समझ नहीं आ रही है अयाज की कि वो क्या कर रहे हैं, उनका रोना खत्म नहीं आ रहा हो रहा. मतलब आई वांट हिम टू नाउ डू समथिंग ना. मतलब मैं अयाज को रोते रोते देखकर तंग आ गई. दुपट्टा पकड़ के उनका दुपट्टा सही कर दिया उन्होंने. वो तो बिल्कुल ही ऑफ सीन था. उसकी क्या लॉजिक थी कि वो एक रोमांटिक सा एंगल उन्होंने डाल दिया, वो गन कर रहे हैं, और वो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि वो कितने उससे मुड़ी है कि दुपट्टा गिरा सही टाइम पे. यू नो, आई जस्ट अप्रिशिएटेड दैट कि वो दुपट्टा पूरा गिरा, दैट ही हैड टू पिक इट अप और उसको देना पड़ा, क्योंकि दुपट्टा आधा भी हो सकता था, वो भी हो सकता था. सो काफी वीक एपिसोड. रिफ्लेक्सेस बिल्कुल फ्रीज हो गए थे उस वक्त. नूर ने खुद नहीं उठाया दुपट्टा. वो गन से डर गई थी. उन्होंने कहा मैं दुपट्टा उठाया तो अयाज मुझे गन से मार ना दे, तो वो डर गई थी. तो आई वांटेड टू से समथिंग अबाउट अयाज, बिकॉज़ अयाज शुरू में वाज वेरी प्रॉमिसिंग एंड यहाँ थोड़ी सी डायरेक्शन की जरूरत है. एक तो बेचारे का आई थिंक स्क्रिप्ट में वो बार बार एक ही चीज करे जा रहा है. वो भी बेचारा कितनी दफा एंग्री एक्सप्रेशन देगा, बट आई थिंक हिज जर्नी नीड्स टू मूव ऑन फॉर हिम एज अ कैरेक्टर हु नीड्स टू डेवलप. And because he is a promising young boy, we enjoyed watching him in Ek Hai Nigaar, and I would like to see him. I was looking forward to some interesting interaction between Ayaz and Meher and Noor, and that's not happening. वो पता नहीं अभी 3-4 किस्तों के बाद शायद हमें ड्रैग कर करके ये दिखाएंगे, क्योंकि अयाज वो उम्मीद की किरण है जो दोनों के काम आ सकती है लड़कियों की, और वो उसके साथ घर जाके अपने रह सकती है, यू नो. लेकिन ऐसा कुछ जाके रहिए ना, वहाँ कितने स्ट्रांग हो जाएंगे the three of them together, they can go there. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे. तो वो मेहरू जो है वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करी है, जो वो उसको नूर को कहती है कि हम जाएंगे लेकिन अभी नहीं. व्हाट इज शी वेटिंग फॉर? शी इज वेटिंग फॉर अस टू सी 2 more kiss ताकि the drama can वो जो ग्लास उतार के तोड़ा था ना, आई लाइक दैट. आपने तो मेरे वाला जवाब दिया है. हाँ, ये बिकॉज कोई वजह नहीं समझ आ रही कि क्यों भाई तुम्हारे जेवर भी चोरी कर लिए उसने, और तुम्हारे और लकली पेपर्स आल्सो नॉट विथ हिम. या तो आप पेपर्स की वजह से रुके कि मुराद के पास पेपर्स हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, निकलो यहाँ से बाहर, क्यों बैठी हुई हो. तो बाद में तो बच्चा भी उससे छीन सकते हैं और बच्चा ना दे उसको, वो सब चीजें क्या होगी. बट यू आर राइट, कमिंग बैक टू तुम्हारा जो कमेंट है कि वो जो ग्लास उठा के वो फेंकती है, दैट वाज वेरी इंपैक्टफुल. आई वाज वेटिंग कि वो कुछ कहेगी, लेकिन आई थॉट कि हाँ ये अच्छा किया कि उन्होंने इसको बस इसका गुस्सा यहीं तक दिखाया. एंड मावरा ने उस वक्त बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस दिए, और वो ग्लास टूटता है एंड देन शी जस्ट टर्न्स अवे एंड यू कुड फील कि इस वक्त इसको कितना गुस्सा है, ये तो मार सकती है इनको, यू नो. Because हमें भी गुस्सा आ रहा था, so actually it gave vent to our emotions too, and I like Pari's expression because वो actually थोड़ी सी डर गई थी. अभी तक
मावरा ने इसने महर ने कोई ऐसी बात करी नहीं थी, सो ये दोनों की दोनों थोड़ी सी चौंक गई थी इसके रिएक्शन से। Yeah. So, Other than that, nothing much happened in the drama. मतलब मेहरान का वही सिलसिला चल रहा है कि उसकी अम्मा के लिए शादी कर लो, वो कह रहा है मैंने शादी नहीं करना। I like it कि नूर ने फाइनली उसको सुनाई और बोला इंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। थैंक गॉड। नूर का कैरेक्टर अगेन अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जो बहुत कुछ कर सकता है और करना चाहिए, लेकिन वो भी कछुए की चाल पे स्लो 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 चल रहा है, I agree, स्लो चल रहा है। एंड I also wanted to point out मदर की जो ब्रेन वॉशिंग थी मुराद के साथ, बड़ी स्कैरी ब्रेन वॉशिंग थी जिस तरह वो बैठ के करती है। और मुराद देखो शुरू में सही पटरी पे चल रही, ही वाज कन्विंस्ड इट इज हिज चाइल्ड, लेकिन उसने बातें ऐसी करी कि उसको पूरा टर्न कर दिया उस तरह। सो शी इज, वो थोड़ा सा उसकी बातें, मतलब आई थिंक एट सम लेवल और द अदर इट हैपेंस इन हाउसहोल्ड। सो आप लोग थोड़ा सा सोच के देखें जब ये, that was it। अगर कोई मैसेज मैं इसमें से निकालना चाहूंगी तो ये होगा, अदरवाइज आई डोंट सी एनीथिंग। दिल मोमिन। ओह राबिया तो आज बड़ा फास्ट, मैं तो वो सफे पलट रही हूँ। राबिया इज ऑन। दिल मोमिन जी, क्या कहानी है जी, बद्दुआ लग गई है उनको क्या? आगे मैं कुछ बोलूं कि नहीं बोलूं? पहली एपिसोड मुझे अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। आई लाइक द होल एंगल कि वो लड़कियां आती हैं और वो मोमिन को बोलती हैं कि वो आपकी वजह से ये हो जाएगा तो आप करें, वो एहसास दिलाती हैं। तो ये एंगल अगर दिखाया जाता कि हाँ मोमिन को रियलाइज हो रहा है कि मे बी उसको इतनी हार्शली बात नहीं करनी चाहिए थी, उसको जरा फर्मली बात करनी चाहिए थी, लेकिन हार्शली बात नहीं करनी चाहिए थी, और अब वो उसमें जाएगा, उसको माफी मांगेगा, वो और फंसेगा। तो मुझे ये एंगल सारा अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। मोमिन और आशी का भी जो इंटरेक्शन है, जो आशी अपने फादर के अगेंस्ट खड़ी हो रही है और उसको मोमिन से भी शिकवे हैं, वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा था कि चलो मूवमेंट तो हो रही है ना स्टोरी में। और आशी टिपिकल रोती धोती लड़की नहीं दिखाई है उन्होंने। व्हाट डिड यू थिंक? टू थिंग्स, मुझे आशी की बातें तो पसंद आ रही हैं कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, और जो भी उसने कोशिश करी, भाई वो हाथ ना देती, आगे अंगूठी ना पहनती, ये पूरा हाथ जलाने का ड्रामा अगर तुम्हें नहीं करनी आज तक किसी, आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर एंड पहली सी मोहब्बत? क्योंकि वो रो धो के कर रही थी, इसने हाथ जला के कर दिया, शोर मचाया, करना तो दोनों को वही था। अगर वो मोमेंट से कह रही है कि तुम मुझे लेकर जाओ, बाय द वे वील कम टू दैट आल्सो, तो भाई तुम अपना हाथ आगे मत करो, तुम कह दो कि मुझे नहीं करनी है मंगनी, नंबर वन। नंबर टू, हाँ चलो तुम नहीं बोलो नहीं पहले। बोलो, नहीं फिर मैं दूसरे माँ ने उसको बोला है ना कि तुम नहीं करोगी तो मुझे डाइवोर्स दे देगा, सो यू हैव टू। वो तो माँ ने माँ पे भी नाराज हो रही थी बाद में, माँ पे भी कह रही थी कि आपको तो अपना अपना ताल्लुक बचाना था, तो या तो मैं यही फिर कह रही हूँ ना कि माँ ने उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया ना, इसलिए वो मंगनी पे मान गई है। और मोमिन ने भी उसको कहा कि तो वो इन सब की बातों की वजह से वो मंगनी पे मान गई है। आई फाउंड इट क्यूट। ये एक्चुअली इंडियन ड्रामों में बहुत दिखाते हैं, सोप्स में, कि वो लड़की ने अंगूठी नहीं पहननी होती है तो वो कुछ कर लेती है, वो जलाती तो नहीं है, कुछ ना कुछ होता है, जख्म हो जाता है या फेक पट्टी होती है। तो मुझे हंसी आ रही थी बिकॉज ये चीज मैंने बहुत से इंडियन सोप्स में देखी है। इनफैक्ट जो लोग इस प्यार को क्या नाम दूं देखा हुआ है आपने, उसमें वो जानबूझ के नहीं करती, बाय चांस हो जाता है। वो दिखाते हैं किस्मत की उसकी चोट लग जाती है एंड शी कांट वेयर द रिंग हियर, तो उसको दूसरे हाथ पे रिंग पहनाता है क्योंकि वो असल वाले जो उनके मंगेतर हैं वो अभी उसको रिंग नहीं पहना रहे होते। तो मुझे वो फनी भी लगा, क्यूट भी लगा। आई वाज ओके। बट क्योंकि ड्रामा उस तरीके से रोमांटिक नहीं है, उस सेंस में रोमांटिक नहीं है, तो मुझे इसकी प्लेसमेंट और इस चीज की वो वैल्यू और वो कनेक्शन या वो फील नहीं आई। आई लाइक वो अच्छा इसने कर लिया क्योंकि वो आपने रोमांस नहीं दिखाया, आपने आशी और मोमिन का बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा मेच्योर, बड़ा डिसेंट किस्म का कनेक्शन और रोमांस दिखाया है ना। उसमें कहीं भी आपने इस तरह की जज्बातियत नहीं दिखाई है अभी तक। दे आर बोथ वेरी लॉजिकल एंड टू द पॉइंट एंड वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये वाला जो सीन था, ये फिर उस पूरे सिनारियो से समझ नहीं आ रही थी गिवन द टू पीपल जिनसे कनेक्टेड है। हाँ, बट व्हाट डिड यू थिंक? क्या मोमेंट को उसको ले जाना चाहिए था व्हेन शी वाज सेइंग कि मेरा हाथ पकड़ो, मुझे अभी लेकर जाओ? शुड ही हैव टेकन हर? नो, आई थिंक अगर उसकी माँ उसको इजाजत देती तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मोमेंट को इस तरह ले जाना चाहिए था, क्योंकि इससे हालात और ही खराब होते। बाप गुस्से में आके और क्या कर लेता क्या नहीं करता। मेरा ख्याल है इस सारी चीज को थोड़ा टाइम देके जमील को समझाने की जरूरत है। दे नीड टू कम अराउंड एंड कीप टॉकिंग टू हिम समहाउ और द अदर, या फिर माँ एक स्टैंड ले,
कोई ना कोई लड़की के साथ होना चाहिए। मेरा ये कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। सो माँ अगर स्टैंड ली थी तो माँ को भी घर से बाहर निकाल देते, ये तो क्या या तो फिर माँ की चॉइस थी कि वो बेटी के लिए ये कुर्बानी दे रही थी, वो कहती ठीक है यू आर बीइंग अनरीजनेबल। I like the way they cornered her. Sorry. नहीं, I'm saying I like. I'm just saying कि वो उसको बोलती कि I do not agree with your decision, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कर रही हूँ, तुमने जो करना है। और शायद जमील नहीं करता, कुछ लोग होते हैं कि वो भड़कियां मारते हैं क्योंकि उनको पता है कि लोग डर जाते हैं, और कभी कभी they don't actually go through it, तो they could have tested this out also. They could have tested, but he seems like a dangerous character. He seems like venomous and everything. I do have to say he's a bully, Shazia, he's a bully, ठीक है, वो एक completely bully, वो इंसान है जो किसी बात से खुशी नहीं होता। मोमिन ये करेगा तो मोमिन की दूसरी चीज बुरी लगेगी, वो ये करेगा तो, और वो सिर्फ एक उसमें आके ना, क्या एक वर्ड होता है, मतलब उससे चिढ़ में आके मोमिन से, और मोमिन को अपनी बेटी की चीज को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो हाँ, तो बुलीज को जब एक दफा धप करते हैं ना, तो बुलीज पीछे हो जाते हैं। लेकिन जब कोई उसको धप ही नहीं करेगा, मौलवी साहब भी आए तो उन्होंने बड़े उससे बात की, मोमिन ने भी आके माफी मांग ली, बीवी तो वैसे ही नीचे लगी हुई है, बेटी ने एक दफा बोला, पता है बेटी की तो उसको पता है कोई वो नहीं है जब तक Do you think कि क्योंकि बार बार जमील को कहा गया है मोमिन तो मोमिन है, मोमिन तो ऐसा है, मौलवी साहब ने भी आके कहा कि आप तो मस्जिद का रुख नहीं करते हैं, वो रास्ते में जा रहे थे कि चलिए हम नमाज पढ़ लें, भाई आप जब एक इंसान को चाबी दे रहे हैं तो वो वैसे भी ही हैज दिस सार्कास्टिक थिंग इन हिम, तो वो और ज्यादा उनकी जिद जो है अनबर्दाश्त का लेवल खत्म हो गया है मोमिन के साथ। He doesn't like मोमिन। बर्दाश्त जितनी शादी, कुछ हमारे यहाँ फैमिलीज में ना अक्सर ये मर्दों में होती है, कभी भी औरतों में भी होती है, कि एक सीनियर इंसान जो है वो अपने आप को एक छोटे बच्चे या लड़के के साथ या लड़की के साथ ना उस पे ले आता है, हालांकि कंपैरिजन नहीं होता है। तो इस वक्त जमील यही कर रहा है कि उसको लग रहा है कि ओ मोमिन रिलीजन वाइज भी मुझसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, दुनिया में भी मुझसे परफॉर्म कर रहा है, और ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो उसने अनकॉन्शियसली उसके साथ एक मुकाबला शुरू कर दिया है, और अब वो उसको जीतना चाहता है कुछ भी करके, यू नो, वांट्स टू प्रूव कि मोमिन गलत है। उसमें रिलीजन भी आ जाता है, उसमें दुनिया भी आ जाती है, उसमें उसकी इनसिक्योरिटीज भी आ जाती हैं, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। So he's not being handled right, I think. However, he's a difficult character. अच्छा, फखर साहब का क्या ख्याल है आपका? वो तो बिल्कुल ठीक लग रहे थे घर में, आगे जाके उन्होंने हरकत कर दी, उस वक्त नहीं लग रहा था मुझे। या अच्छा, मैं पहले ये कहने वाली थी, मैंने कहा चलो उन्होंने ड्रामे में ये दिखाया है कि जो अल्टरनेटिव है वो इतना बुरा नहीं है, एंड देन वो पट से आके वो हो गया। So that was interesting, लेकिन वो यकीन नहीं करेंगे जमील साहब, I think, even when he finds out. So let's come to the conversation जो मौलवी साहब ने मोमिन के साथ की। मैं अब तक ड्रामे को बड़ा अप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन आई वाज लिसनिंग एंड आई वाज लाइक ये क्या बात हो रही है, ये क्या कह रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ तमाम कंटेंट क्रिएटर्स से और राइटर्स से, और जो कंटेंट टीम्स बैठी हुई है, प्रोडक्शन हाउसेस और चैनल्स और सब जगह पे, जब आप रिलीजन को उठाते हैं प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। आई मीन इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर होती है। मत टच करें रिलीजन के टॉपिक्स को, यू नो, इट्स ऑलवेज सो डिफिकल्ट कि आप क्या। अब आप खुदा और मोहब्बत वाला केस दोबारा ले आए। माया एक लड़की जो ऑब्सेस्ड है उस टीचर से, क्योंकि उस टीचर ने उसको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई, जो सिंगल माइंडेडली ये सोच रही है कि मुझे ये शख्स चाहिए, जबकि वो शख्स कह रहा है कि भाई नहीं, मुझे नहीं चाहिए हो तुम, यू नो। ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप कह रहे हैं कि उसकी बद्दुआ की वजह से मोमिन के साथ ये हो रहा है, एंड मोमिन शुड गो एंड अपोलोजाइज, एंड मोमिन शुड गो एंड मेक श्योर कि उसका दिल ना टूटे। मतलब हम फिर वही बात एंडोर्स करें कि वो तमाम लोग जो वन साइडेड मोहब्बत में, जो ऑब्सेस्ड है लोगों से, जिन्होंने ईगो का बनाया हुआ है, अगर उनको किसी भी किस्म का दुख दे दिया जाए, उनको किसी भी किस्म की रिजेक्शन दे दी जाए, तो उनका दिल टूटेगा। उनका दिल टूटेगा तो फिर खुदा जो है वो दूसरे इंसान पे, जैसे माही पे क़यामत उतरी थी और जैसे मोमिन पे उतरी है, वो होगा। आई एम सॉरी, मे बी मैंने क्या गलत समझी है ये बात। मतलब ये आई जस्ट कुड नॉट बिलीव शाजिया कि ये बात हो रही है। एंड आई वाज
ये और वो अगर अगर तुम जाके नीचे कमेंट्स पढ़ो ना तो लोग बड़े इन्फ्लुएंस हो रहे हैं दिल मोमिन की बातों से। तो इट्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ वेरी थिन लाइन जिस पे आप वॉक कर रहे होते हैं, यू नो। It was very dangerous. Two things. Number one, अगर वो आप मौलवी साहब की कॉन्वर्सेशन हटा भी दे राबिया, ठीक है, मौलवी साहब हैज गिवन वैलिडेशन टू इट। पहले आपने दिखाया कि माया ने उसको सब वो वॉइस नोट भेजे जिसमें उन्होंने कहा कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी। फिर आपने दिखाया कि उनकी बात जो 101% समझ रहे थे कि वो चली जाएगी, वो टूट गई, ठीक है। अब द एवरेज पर्सन हु इज वाचिंग टीवी हैज वॉच्ड खुदा एंड मोहब्बत एंड नाउ ही इज वाचिंग दिस, ठीक है। उसके ऊपर आपने फर्दर उसको वैलिडेट करके आपने मौलवी साहब को दिखा दिया, और आपने उसको बैलेंस ऑफ करने के लिए ये कहा कि नहीं, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो सब ठीक हो जाएगा। पहले अल्लाह मियां ये करेंगे, लेकिन फिर अल्लाह मियां ये करेंगे। किस चीज की माफी यार, किस चीज? और फिर सिर्फ ये एंगल नहीं है, फिर ये भी है आशिक की मोहब्बत कितनी वैल्यूएबल है। एक लड़का लड़की जो एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं और बड़ी पाकीज़ा मोहब्बत है उनकी, बड़ी अच्छी डिसेंट मोहब्बत है, उसका दिल जो टूटा है उसको उसका कौन सवाल जवाब देगा? उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? उसका फिर अजाब जाके किस पे गिरेगा? और तीसरी बात ये, फिर वो मोमिन को कहते हैं कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई हो सकती, तुम तो मोमिन हो, तुम तो किसी का दिल, अरे किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, आप ये बोलते हैं कि ये आजमाइश है तुम्हारे लिए, ये क्यों आपने ये एंगल डालना है कि ये बद्दुआ है या ये किसी का दिल टूटने की वजह से अल्लाह तुम्हें कर रहा है? मतलब एवरी टाइम अगर कुछ होता है तो कभी अल्लाह आपके ऊपर आजमाइश भी देता है, हम अल्लाह के बारे में पॉजिटिविटी क्यों नहीं फैला रहे हैं, यू नो। सो मुझे तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन, आई वाज सो डिस्टर्ब्ड एंड आई वाज सो अमेज्ड कि ये क्या बात हो रही है, बिकॉज मुझे लगा इट्स रेपिटेशन ऑफ अगेन खुदा और मोहब्बत 3 जो हम हर वक्त बोलते रहे थे, हर वक्त बोलते रहे थे। तो बस कल फिर वो गली का नुक्कड़ पे वो जो इंसान आपको बार बार पीछे आपके आ रहा है और आपने मुड़ के उसको एक दफा जोर से डांट के बोल दिया है ना, उसका दिल टूट गया, उसका दिल टूट गया, उसका दिल टूट गया। अब आपकी जिंदगी में जो नेक्स्ट आजमाइश है ना, वो उसकी बद्दुआ है। This is what you have communicated to me. Sorry. बिल्कुल, and then also Rabia, this obsessive kind of love जो हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई माया cannot accept a no and Gauhar cannot accept a no. No one can accept a no, and then you go around in these circles. So we can break out of this and show a real relationship for a change जो हम नहीं देखेंगे। यही बात कि गौहर कि माया ने गौहर का दिल तोड़ा, तो अब मोमिन माया का दिल तोड़ रहा है। मतलब आप सोचने जाएंगे तो फिर आप ऐसी बातें सोचेंगे, नहीं जी प्लीज ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों की बेवकूफाना डिसीजन को आप अल्लाह ताला की आजमाइश या अल्लाह ताला की का कहर नहीं कह सकते हर बार, यू नो। हर किसी के हक और हर किसी की प्राइवेसी और आपकी मर्जी ना मर्जी है, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, खत्म बात भाई। यू कैन नॉट पनिश दैट पर्सन फॉर नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन यू। और आई वुड हैव रियली लाइक्ड दिखाते कि मोमिन जाके उसकी माँ से बात करके, उसको फर्मली बात करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। ये कनेक्शन बिल्कुल दिल टूटना और ये सब ये नहीं करते। वो लड़कियां सर से कर रही हैं रिक्वेस्ट, ठीक है, वो उसको बुलाता, वो बुठाए उसको और बोले कि देखो मैं और मुझे तुम में किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तुम वो हो लेकिन तुम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ो, तुम ये करो। उसकी माँ को मतलब आप एक सही रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे लड़के लड़कियों को, क्योंकि ये चीज होती है, ये कॉलेजेस में होती है। जब आप मोमिन की बात कर रहे हैं कि वो इतना मैच्योर है, वो ये है, तो फिर दिखाएं ना उसको एज एन एग्जेम्पलरी कैरेक्टर। अब आप परिजात को दिखा रहे हैं एज एन एग्जेम्पलरी कैरेक्टर, तो यहाँ आपने उसको इतना चढ़ाया एंड देन नाउ ही हैज कम डाउन टू दिस फीलिंग एंड वो जाएगा उसके घर अभी। इवन देन उससे पहले भी उन्होंने दिखाया कि अगेन मतलब जो लोग इस किस्म का स्टैंड लेते हैं किसी भी चीज पे, आपने दिखाया कि वो वॉक कर रहा है, ही इज रिमेम्बरिंग कि वो उसने भेजा था कि मैं चली तो जाऊंगी लेकिन आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे। क्यों दिखा रहे हैं आप कि वो ये सोच रहा है? व्हाई? प्लीज ब्रिंग अनदर एंगल। अगर किसी ने स्टैंड लिया है, उस बंदे को गिल्टी नहीं फील कराना चाहिए। अब अगर वो उसको नहीं करता, और मतलब रोकने के और तरीके हो सकते थे करते, लेकिन अगर उसको नहीं रोकता तो माया तो आगे ही चली जा रही थी, कहाँ रुकेगा, क्या होगा ये? और क्यों? एंड आई एम सॉरी, ओके आई एम सॉरी, माया की फीलिंग्स है, हाउ डज इट मेक मोमेन obligated to respond to her in the way that she wants or we want? मोमिन को नहीं interest, he can say whatever he wants to. I'm sorry, I just feel that way, you know, because वो एक इंसान है। उसने तो तुम नहीं बोला कि भैया आप आके मुझसे मोहब्बत करें, उसने तो नहीं बोला आप मेरी वजह से पागल हो जाएं,
ठीक है उसकी गलती थी कि उसको कॉल करके क्लैरिफाई जरूर करना चाहिए था, वो एक गलती थी, लेकिन आप उस गलती की बात नहीं कर रहे। उसने कर दिया ना, अब कॉलेज में कर दिया, सबके नहीं, सामने लेकिन कर दिया। लेकिन शाजिया ड्रामा उस गलती की बात नहीं कर रहा, ड्रामा इस पे बात कर रहा है क्योंकि उसने झड़क दिया उसको, तो उसने उसका दिल तोड़ दिया और वो चली गई। ड्रामा इज नॉट टॉकिंग अबाउट द गलती दैट मोमेंट में। Yeah, so that is all. It was a very sad scene for me जब मैं देखी थी, because मुझे दिल मोमेंट इंटरेस्टिंग लग रहा था, and I was watching. I am watching. So let's see आगे क्या होता है. I completely agree with you. काफी यहाँ narrative fall हुआ है, बहुत सारे loopholes आए हैं, and हम काफी disappointed हुए हैं because. सिंफे आहन. Okay जी. मजे की इंटरेस्टिंग एपिसोड थी. आपका क्या ख्याल था जब वो चीख की आवाज आती है भाई को? मैं समझी थी वो प्रिटेंड कर रही है, वो उसको सरप्राइज कर रही होगी, राइट? Yes. I also thought that, और मैंने कहा इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है, ड्रामा करने की. But I really did like the twist in the scene because सुनो, अगर मेरे घर में चूहा होता मैं इसी तरह रिएक्ट कर रही होती. I'm sorry. It was very बहुत ही मजे का एग्जीक्यूट किया हुआ था, and we were laughing, and I have to say Usman Mukhtar did an amazing job. He was so natural, और उनकी फेस की एक्सप्रेशन देख देख के मुझे हंसी आ रही थी, and I was like, this guy is very talented, because हम कहाँ के सच्चे थे में भी उनको बड़ा देखा है, लेकिन ये वाला देखो कितना छोटा सा सीन था और उसमें बड़ी सेंसिटिविटी के साथ बड़ी उस तरीके से आपको एक्सप्रेशन देने थे कि ओवर भी ना लगे और लोग जो सुन रहे हैं वो हंसे भी, and he managed to do that, like his expressions. I can't believe you guys are actually doing this. मैं भागता हुआ आया, मेरी जान निकल गई, and ये हो रहा है और तुम आर्मी में जाना चाह रही हो. So I really like that, मजा. I like the fact that I think a lot of people must have connected with the scene, क्योंकि हमारे घर में यही होता है, अगर कहीं कोने में कुछ छुपकली. अच्छा, I'm glad they did a चूहा, not a छुपकली, because the चूहा is more scary than the छुपकली. चूहा जो है वो तो जमीनों पे घूम रहा होता है ना, आपके पैरों में आ सकते हैं, चलो बहुत तेजी से भागता है, उसको पकड़ना मुश्किल होता है. अब मुझे भी डर लग रहा है. Let's move on to the next topic. I don't want to talk about चूहे. मुझे डर लग रहा है. It was good, but I do have to say that they've managed to engage us with all the stories, and मुझे especially आरज़ू की story बहुत अच्छी लगी थी. I have to give a shout out to Saira. I loved the way जब वो बिस्तर पे बैठ के अपनी अम्मी से बात कर रही थी, उनका frustration, उनका anger कि मेरी self esteem मिट्टी में मिल चुकी है, the way she said it गुस्से में, कि अब मेरा ये पॉइंट आ चुका है कि मैं मांग रही हूँ बार बार कि तुम कब कर रहे हो शादी. एंड अगेन जब वो छत पर भी थी राबिया, अगेन आई लव दैट सीन, द वे शी वाज टॉकिंग. शी डिडंट लाइक हरसेल्फ when she was doing it, और जिस तरह वो सेल्फी भी ले रही थी, she was not smiling, then she made herself smile. So beautiful. I just loved it. I think जब वो मैंने सीन देखा ना, और जब उसने अपनी माँ से बात की, तो I was like, यार ये कितनी पावरफुल बात है. And then उसके बाद उन्होंने दिखाया कि वो छत पे जाके कॉल करी, and I was like, what? And then I thought कि यार इस वक्त कितनी लड़कियों ने इस चीज से कनेक्ट किया होगा, बिकॉज यही होता है. अगर तो महरीन के केस में भी ले लो, वो दो एंगल्स है ना. एक ये कि लड़कियों को कितना भी पढ़ा लो, जिस तरीके से ब्रॉट अप किया हुआ है या कुछ है कि वो मोहब्बत में पागल होती हैं, एंड जब मोहब्बत करती है तो उनको अपनी ईगो मार के वो बहुत कुछ कर रही होती है. एक ये एंगल आता है. सो वो बहुत सी लड़कियां देख के कनेक्ट करी होंगी. सेकंड यही कि वो 5 साल से, और बहुत सी रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जो चल रही होती हैं 3 साल से 4 साल से, इन द होप कि शादी इवेंचुअली हो जाएगी, एक स्टेबल लाइफ हो जाएगी. एंड I found this to be the most powerful track of all. बहुत मजे का था in this episode till now, because I felt a lot of females could and men also could connect with it, And I think वो pressures की माँ बाप की तरफ से भी है ना. अम्मी भी कह रही है बेटा चल रहा है, वो अच्छा खासा है, तुम्हें शादी, you are all, and then she said I don't think I'm in love with him anymore. But आपको यही कि बस अब खींचना है relationship, अब कर लो शादी. उसकी माँ कहती है ना, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी भी और हमारी भी. Yeah, that picture, the fact that he kept asking for it, he didn't forget, was quite scary also. It was connecting with other scenarios जो लड़कियों के साथ हुए होंगे, and किस तरह लड़के आपको फोर्स करते हैं again and again, भेज दो ना, एक तस्वीर भेज दो ना. So I think that was real. It's picking up a lot of issues other than the army, which I think Rabia you mentioned. Umair Ahmed is picking up a lot of issues other than just saying कि सबको जाना है. उन्होंने एक back story दिखाई है सबकी. अच्छा जी, शाइस्ता. शाइस्ता मजे का था. मुझे बड़ा मजा आया वो जो गाड़ी का पूरा सीन था, और it was so cute. मैं तो हंस रही थी जब वो आ जाते ना बीच में कि मेरा पता नहीं क्या, मैं अपना आईडी कार्ड भूल गया. आईडी कार्ड. हाँ, तो वो उससे कहती है कि
वो भुट्टा लेने गई हैं. I couldn't stop laughing. And he's like, no, तुम जाओ, तुम्हें शाइस्ता बाजी का पता नहीं है, वो गुस्सा हो जाएंगी. So it was very far-fetched, very honestly speaking. But it was fun to watch. I kept laughing and I was like, जब वो जल्दी आ गया, मैंने कहा अब क्या बहाना बनाएगी ये, कैसे, you know. So मुझे मजा आया देखकर. हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया देखने में. I think उन दोनों का जो केमिस्ट्री है ना, मीरब, am I right? मीरब एंड शाइस्ता, it was just amazing. It was so cute. और वो लग भी बहने रही होती हैं दोनों की दोनों. She's doing a very good job actually. और वो जो लड़की है वरी मोहब्बत, वो खालिद अनम के बेटे हैं, तो उनका भी ये पहला ड्रामा है, if I'm not wrong. So that was also interesting to see. And I like the तीनों की केमिस्ट्री मजे की बन रही थी ना. जो वो कहता है मेरे से तो पूछो हुआ क्या है, और फिर वो कहती है चलो अब तुम इस खुशी में हमें खाना खिलाओ, बाजार लेके चलो. So very relatable, very interesting. And I also like the small details that Nadeem साहब have taken care of, कि you know उन्होंने दिखाया कि वो यहाँ से जाती है और वो यहाँ से बाहर निकल रहा होता है, you know. So जब उसका ऊपर है तो उसने उसको नहीं देखा है, you know. तो ये क्वेश्चन हो सकता था. फिर वो कहता भी है मैंने एक लड़की को अंदर देखा जो तुम्हारे जैसी भी लग रही थी, you know, मुझे. बट मैंने सोचा आप कैसे कर सकती हैं. सो आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि उन्होंने इन छोटी छोटी बातों को का ख्याल रखा हुआ था इस सीन को करते हुए. का ख्याल रखा. आई लव द मदर, जब वो कहती है तुम तो कह रही थी कि वो फेल हो जाएगी, तो पास होके आ गई है. दैट वाज अ फनी सीन. दैट वाज, एंड द वे शी इज रनिंग आफ्टर, उसकी दादी को भी वो जब चिढ़ा रही थी शाइस्ता, एंड शी वाज रनिंग आफ्टर. दैट वाज आल्सो अ वेरी well done. I mean, they're adding the humor and the amusement to it. और शादिया मजा भी आ रहा था देख के ना, एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि देखो डिस्पाइट द चैलेंजेस ये आई है, इन्होंने कोई स्कीम बना ली है और ये भी अप्लाई कर रही है, you know. So I like the uplifting part of the whole story of Shaista also till this point, you know, कि वो पकड़ी जाती है फिर भी वो कोई सोल्यूशन निकाल लेती है और भाई को बोलती है कोई बात नहीं, हम आधा दिन बैठे तुम्हारी गाड़ी में, which was again a bit far fetched, but ठीक है, you know. So जब चीजें मजे की हो रही होती हैं तो फिर आप छोटी छोटी चीजों को कहते हैं यार let it go, it's okay, let it go, you know. या चली गई लेकिन वो रात को. क्या ख्याल था आपका वो प्लान का? हाँ, so मेरा ख्याल ये था. आप कुछ कहना चाहेंगी पहले या मैं बोलूं? So मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने एपिसोड एक्चुअली कल देखी थी पूरी, पहले नहीं देखी थी. She did not know a way out. She had to go. And she left. अब वो अपनी बहन के साथ, बहन का प्लान साथ में था. वो जा तो अकेली रही थी, जब दरवाजा खुला तो सामने वो खड़े हुए थे. अदरवाइज तो वो अकेली ही जाती, which would have been scary for me. इस तरह अकेला ट्रैवल करना और जाना, और शायद पहुंच भी जाती, फिर फोन कर देती अपनी बहन को कि मैं पहुंच गई हूँ, बता दो सबको. मेरा ख्याल ज्यादा ये था राबिया कि जब घर वाले सुबह को उठेंगे और देखेंगे कि ये लड़की गायब है, तो इट्स वेरी स्कैरी फॉर द एंटायर खानदान. और काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिहेव करते हैं. तो आप देखें, आप किसी चीज को रियल लाइफ में प्लेस करके देखें. जैसे हम कह रहे हैं इतनी सारी चीजें रेजोनेट कर रही हैं, जैसे अभी व्हेन वी कम टू राबियाज पार्ट, ओके, जिस तरह दानियाल इज एक्सप्लेनिंग टू हिज फैमिली, हम पढ़े लिखे खानदान से आते हैं, हम ये करें, सो मेनी पीपल को रिलेट टू इट. जिस तरह आरजू का कैरेक्टर, तो ये मुझसे रिलेट नहीं किया जा रहा था कि एक लड़की चली गई है और सुबह फैमिली उठेगी, वो सोचेगी कहाँ भाग गई. सो फॉर मी दैट वाज स्कैरी. सो मेरा ये पॉइंट था कि ठीक है ये कहानी है, उसमें आप ये दिखा रहे हैं कि उसके पास और कोई तरीका नहीं है, तो वो ये करने की कोशिश कर रही है. तो मेरी ये सजेशन थी कि मे बी आप इन्वॉल्व कर लेते माँ को या घर में किसी एक और बड़े को, just to have a protection, just to know, किसी घर में किसी बड़े को पता होना चाहिए था कि शाइस्ता इस वक्त क्या करने जा रही है, या खत लिख के चली जाए, बता दे कि मैं यहाँ जा रही हूँ. वो तो बहन को पता है, खत नहीं. I feel one of the adults should have planned it this way कि किसी एक बड़े को जरूर पता होना चाहिए था कि शाइस्ता क्या कर रही है, and somehow वो उस पे नजर रखे हुए होते. ये बड़ी, आप मुझे बेवकूफ बुला लें, जज्बाती बुला लें, आई एम क्वाइट ओके टू टेक ऑल दीज अलकाब और जो भी है. ये ना बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं. लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं और ड्रामे इन्फ्लुएंस करते हैं. मैं इस पे दोबारा डिस्कशन करना ही नहीं चाहती कि ये ड्रामा, इसको ड्रामे की तरह नहीं. जहां ड्रामे को हम ड्रामे की तरह, जैसे हमने बोला कि शाइस्ता गाड़ी में बैठी हुई और फिर चली जाती है, हमने उस चीज को वहां क्रिएटिव लाइसेंस दिया है हमने, और हम कह रहे हैं ओके. लेकिन आप दिखा रहे हैं कि वो एक अच्छी चीज करने जा रही है, उसके लिए वो घर में छुप के रात को जा रही है. ठीक है, आप बहुत सी लड़कियों को ये आइडिया दे रहे हैं एक अच्छी चीज करने के लिए, बिकॉज आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सही है, तो आप बोलेंगे इट इज ओके व्हाट शी डिड.
एंड शी हैड नो ऑप्शन। लेकिन बहुत सी लड़कियां जब ये करने निकलेंगी तो रास्ते में उनके साथ कुछ भी हो सकता है अंधेरी रात में। यहाँ तो उसका मंगेतर दिखाया, ये भी एक बड़ा अपलिफ्टिंग पॉइंट है, विच इज वेरी गुड। लेकिन कितनों के मंगेतर उन्हें सपोर्ट करेंगे, कितनों के पास ये ऑप्शन है, वो अकेले निकल जाएंगी, बीच में कोई भी उनको कुछ कर ले तो क्या हो सकता है। ये आइडिया आप 2 लड़कियों के जहन में भी डाल दें तो ये कुछ गलत हो सकता है। तो मेरा सिर्फ ये सजेशन था, आप ये दिखाते कि उसने किया है, लेकिन उसकी माँ उस इन्वॉल्व है मे बी, या उसकी फुप्पो इन्वॉल्व है, या उसके चचा उसकी हेल्प कर रहे हैं, एनीबडी, एंड वो फोन पे उससे कनेक्ट भी कर रहे हैं, यू नो, दिस इज ऑल आई एम सेइंग। इवन मंगेतर की भी नियत बदलते हुए क्या क्या टाइम लगता है, यू नो। सो मेरा ये कंसर्न था, एक हम्बल सी सजेशन है, इट इज ओके, एवरीबडी डजंट हैव टू एग्री विद मी। मैंने सिर्फ सोचा और ये सजेस्ट किया, इट इज ओके, जिस तरह ये ड्रामा चल रहा है ये भी मजे का है, इसमें कुछ है नहीं। अगर ये कर देते तो बहुत अच्छा हो जाता। आई वुड हैव बीन मोर हैप्पी, आई वुड हैव फेल्ट के, बिकॉज सिंफियान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस, इट्स गोइंग टू चेंज पर्सपेक्टिव ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस सोसाइटी एंड गर्ल्स। सो आप जो भी कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आती है। तो ये मेरा व्यू है, इससे लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट ये एक हम्बल सजेशन थी, इट्स अ डायलॉग। इसके जवाब में आप लोग भी नीचे कमेंट्स में बोल सकते हैं, हाँ राबिया आपका पॉइंट सही है, बट ऐसे हो सकता था या वैसे हो सकता था। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इट्स अ ड्रामा, टेक इट फॉर अ ड्रामा, इट्स अ ड्रामा, तो फिर हमें इतनी इमोशनली इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है, फिर हम क्यों इतनी तारीफें कर रहे हैं आरज़ू की, फिर हम क्यों इतना बोल रहे हैं कि राबिया के भाई ने जो बोला। नो, दिस ड्रामा इज टचिंग अस एट अ लॉट ऑफ लेवल, ड्रामा इज टचिंग अस द रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी एंड इज शोइंग, मे बी अब आगे जाके आरज़ू जो कर रही है वो एक सोल्यूशन दिखाएंगे ना। अभी उसके भाई ने जो किया है, राबिया के भाई ने जो अपने माँ बाप को बोला है, वो आपने एक सोल्यूशन बनाया है, आपने एक थॉट डाली है लोगों के जहन में। सो दिस इज ऑल वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम, शाज़िया। राबिया, दिल ना उम्मीद में वो सामिया मुमताज की जो बेटी होती है वो जाती है, बट her mother knows, और वो जाके भी इसके साथ बड़ी डेंजरस चीज होती है। लेकिन एटलीस्ट the mother knew कि लड़की घर से नहीं भागी है किसी के साथ, लड़की गई है क्रिकेट खेलने के लिए, एंड अब्बा was not, so I think and then they showed the consequences also कि ये भी हो सकता है। शाज़िया, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट, मुझे तो याद ही नहीं था। इवन दो, अब मेरी बात को भी, इवन दो उसकी माँ जानती थी, फिर भी उसके साथ क्या हो गया, कुछ कर सकी उसकी माँ? कुछ नहीं कर सकी। तो जब आप ऐसी चीज दिखा रहे हैं, ये एक्साइटिंग बहुत लगती है स्टोरी लाइन में, ये स्क्रिप्ट में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बड़ा अपलिफ्टिंग लग रहा है, बट प्लीज ये, एंड आई रियली एम थैंकफुल टू यू शाज़िया फॉर ब्रिंग दिस पॉइंट, बिकॉज आप देखें दिल ना उम्मीद तो नहीं, बस बच्ची के साथ क्या हुआ, हर जायज थी, यू नो। तो सो दिस इज ऑल वी आर, दिस इज ऑल वी आर थैंकफुल टू आमना मुफ्ती फॉर राइटिंग इट लाइक दैट, कि वो हमें बुरा भी नहीं लगा, हमें समझ भी आया कि, और वो भी पता चला। सो जब आप हैंडल कर रहे हैं, आपने करना है, इतने इंटेलिजेंट ब्रेन्स वहां बैठे हुए हैं, मैं तो किसी को अंडरमाइन नहीं करती हूँ, मैं तो कहती हूँ बहुत टैलेंट है, देन प्लीज कम अप विद अ सॉल्यूशन which will put the right choices, the right guiding path for the girls जो देख रही हैं, you know. इसके बाद मैं तो समझती हूँ बहुत सी लड़कियां आर्मी में जाना चाहेंगी। So ये बस एक छोटी सी सजेशन थी। And whenever we write something, ये भी मैं कहना चाहती हूँ, चाहे हम ड्रामा क्लब में बोल रहे होते हैं, या चाहे हम इंस्टाग्राम पे निकाल रहे होते हैं, या ट्विटर पे ट्वीट कर रहे होते हैं, इट इज ऑलवेज अ डिस्कशन, लेट्स हैव अ डिस्कशन, वी आर ऑलवेज ओपन टू हैव अ डिस्कशन, एंड वी आर ऑलवेज, आप लोग हमें कितनी दफा क्रिटिसाइज करते हैं, हम सुनते हैं, हम उठा के बात भी करते हैं, जवाब भी देते हैं, इट इज फॉर अ डिस्कशन, इट इज नॉट अगेंस्ट एनी आर्टिस्ट, स्पेसिफिक आर्टिस्ट, इट इज नॉट अगेंस्ट एनीथिंग और एनी कुछ भी, ये दिल से एक बात होती है कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए और एक डिस्कशन करने के लिए। आप तमीज से, प्यार से अपना जवाब लिखिए, हम सुनेंगे भी और शेयर भी करेंगे। That's all, Shazia. Rabia, actually you didn't need to explain it, but thank you for being humble enough to explain it, because ये हमें हमेशा से पता है, ये कोई ऐसा नहीं होता, we try to do it, कभी हमसे गलती भी हो जाती है, and when we read your comments we know, but एक खुशगवार माहौल में बात करें। अच्छा, one more point, देखो तुम्हारी बात हो रही थी, मैं भूल गई। तुम राबिया और उसके भाई की बात करना चाह रही थी। नहीं, मैं इन्हीं के बारे में, मैं ये कहना चाह रही थी, हमारी जब इतनी गुफ्तगू हुई है, एंड बिकॉज ये जो है ना कि लड़कियां आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं एंड दे हैव बीन सिलेक्टेड एंड देन दे कैन नॉट गो, घर वाले मना करते हैं, I'm thinking that maybe the army also, when they are recruiting girls, they need to have a more proactive method. या तो वो जाके फैमिली से बात करें, उनको बताएं कि आपकी बच्ची इतनी होनहार है कि वो सिलेक्ट हो गई है और आगे का रास्ता यहाँ होगा, क्योंकि ये बच्चियां भी जो है बेचारी बहुत दफा घर वालों से रूठ के जाती होंगी, घर वाले कहते होंगे तुम क्या कर रही हो, क्यों जा रही हो आर्मी में, इट्स नॉट ईजी। सो आई वुड से कि मे बी घर वालों का एक
sort of orientation होना चाहिए जिसमें they should know कि हमारी बच्ची कहाँ, we are coming from a very orthodox society, so why not? It might help. But in response to your this suggestion, I say ISPR is doing this by doing this drama. This is what they are doing. Yes, they're doing this. Yeah, they are doing I'm it. saying on a more one-to-one personalized basis. वो मुझे लगता है शाज़िया, मुझे लगता है वो बाद में आएगा. Once they have been. जैसे शाइस्ता की स्टेज है, उस पे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते. सिलेक्ट नहीं है ना. You are right. ये तब आएगा जब आपने सिलेक्ट हो गए हैं, एंड तब कंसर्न है, तो तब शायद आर्मी कुछ कर सके. बट आई थिंक ISPR जो कर रहे हैं अभी इस ड्रामे के थ्रू, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, चेंजिंग द माइंडसेट्स अबाउट आर्मी एंड वुमेन. ओके, आई रियली लाइक्ड एंड अप्रिशिएट कि अगेन भाई के थ्रू उन्होंने ये बातें बोली कि भाई अगर हम जैसे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा. एंड आई लाइक्ड उस्मान मुख्तार एंड सजल्स कनेक्शन. इट वाज वेरी क्यूट. वो उसको तंग कर रहा है, मजाक कर रहा है. आई रियली लाइक्ड इट. तुमने उस्मान मुख्तार की लुक देखी शाज़िया? कितनी डिफरेंट थी फ्रॉम अस्वद. He's lost completely, done something. I was really amazed, and I really want to appreciate Usman Mukhtar for the way he's looking. जब वो बैठे होते हैं सोफे पे बात कर रहे हैं, his face is looking younger, slimmer. His face is looking, या तो contouring बड़ी fantastic हुई भी है, या तो बाकी he lost weight. I don't know what it was. And I agree with you. Expression wise, he did an amazing job. So shout out to Usman Mukhtar. You did an amazing job. Yes, he did an amazing job. जब अम्मा उसको देख रही थी, वो खड़े हुए थे और अम्मा कह रही थी कि मेरी अपनी नजर जो है वो ना जब फूक रही थी, वाकई he was looking very nice. और कितना उन्होंने देखो कितना जज्बाती पॉइंट उठाया, बिकॉज ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, यू नो. बिल्कुल ऐसा ही होता है. परिवश के ट्रैक पे जो रमशा कर रही है. Yeah, I just wanted to point out, राबिया, कि जहां उन्होंने ये दिखाया है कि दानियाल is supporting his sister, वहां उन्होंने ये दिखाया है कि नौरेज उसको बार बार चाबी दे रहा है कि तुम में तो है ही नहीं वो, तुम कैसे कर सकती हो. So they are showing कि लड़कियों की self esteem किस तरह ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है by the people surrounding them, whether they are men or whether they are women. And I'm so glad they brought that up. And now we go on to Parivesh's track with, I'm loving the little favorites we have in all of them. Him, her and the father at the दुकान. मुझे तो वो सबसे क्यूट लगा था सीन जब अब तुम ये पहनोगी तो कहती है सब पहनेंगे. So it was very nice, you know. बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था. I like the conversation जो अब्बा और बाप और माँ के दरमियान भी के, तो वो भी अगेन देखो, this drama is so full of so many messages. उसने कहा इसकी जिंदगी बनेगी तो बाकी बच्चों की भी जिंदगी बन जाएगी. Which was so good कि देखो ये रास्ता खोलेगी, you know, वरना हम सब यहीं फंसे रहेंगे. बट मुझे कंसर्न ये है कि वो जो आई थी ना खातून उनके मोहल्ले से, जो मुल्तान भेज रही हो, हाँ, उसने देख लिया, वो अब चक्कर करेगी, वो जाके बताएगी कि ये तो जा रही है, ये तो भागने वाली है, जा रही है. लेकिन अम्मा ने बेचारी ने बात रख सी, फिर भी यू नो छुपाया कि नहीं वो तो इसलिए हो रहा है कि मेक सेंस ना, वो क्यों जा रही है. जब उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तो वो क्यों जा रही है, तो वो रेड फ्लैग खड़ा हो गया उसका. कमिंग टू कुबरा's कैरेक्टर माजबीन. Yes, Kubra's character, I love that scene जब उसकी गाड़ी का टायर फ्लैट होता है ना, अब्बा को, और अब्बा कहते हैं कि ये टायर नहीं बदल सकती, ये जाएंगी आर्मी में. It was such a scene. Again judgments. Yes. Yeah. But I liked it कि उन्होंने दिखाया कि वो पंखा लेके जा रही है, you know, उसका पंखा चल रहा है. I loved it कि उन्होंने उसको उसके कैरेक्टर में ही रखा है, you know, वो कैरेक्टर. मेरा मेकअप ऐसा ही रहेगा, मेरा मेकअप बाद में भी ऐसा ही होगा. वो तो उनको पता है. On a platter, like Kubra's character, Mahjabeen is giving it to you here. Come and see, this is what I am. Yes, I can't do it. People will say, वो तो provoke कर रही है कि ये नहीं कर सकती. She is going to go and prove you wrong, inshallah. Again, जो उनके साथ अली रहमान का कैरेक्टर दिखाया, he keeps telling her कि तुम तो ये हो, तुम नहीं कर सकती, तुम तो ये, वही के जजमेंट्स हम लोग कितना करते हैं कि अच्छा ये तो ब्लॉगर है, या ये तो सोशल मीडिया पे है, ये तो बड़ा बन ठन के रहती है, तो ये कर ही नहीं सकती, ना खाना बनाना आता होगा, ना इसको कपड़े सीने आते होंगे, ना ये कोई काम कर सकती होगी. तो यू नो अगेन इट्स रिफ्लेक्टिंग कि औरतों को सिर्फ चैलेंजेस नहीं, कितनी जजमेंट्स फेस करनी पड़ती है ना, बेस्ड ऑन हाउ दे आर कैरिंग देमसेल्व्स, यू नो. हालांकि वो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट हो सकती हैं, यू नो. दो चीजें होती हैं राबिया, मैंने पढ़ा था कहीं, या तो जब आप अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम हर चीज कर सकते हो, बच्चे एक्चुअली हर चीज करते हैं, या तुम अपने बच्चे को कहते हो तुम कुछ नहीं कर सकते, बेचारे दे सफर थ्रू लो सेल्फ एस्टीम, लेकिन वो स्ट्रगल करके वो जिद्दी बन जाते हैं, वो कहते हैं हम अपनी बात मनवाएंगे. एंड दिस इज व्हाट महजबीन इज डूइंग नाउ. शी इज सेइंग कि मैं करूंगी,
कुछ हो या नहीं हो, I will do it. I think she wants to escape her situation also at home. बिल्कुल. So it's But I just hope कि उनकी जो अली रहमान की कैरेक्टर कुछ ज्यादा दिखाते, कभी वो कॉन्सर्ट के टिकट्स लेकर आ रहे हैं, कभी वो खाना खा रहे हैं, कभी वो साइकिलिंग कर रहे हैं, he has nothing else to do. ऐसे कितना फारिग बंदा है यार, कुछ तो करो, कुछ जॉब वॉब दिखाते, कुछ कंस्ट्रक्टिव दिखाते. उसको बोले जा रहे हो खुद तुम जिंदगी में क्या करो. Sorry, this is based on what has been shown to us on the drama. Yes, yeah. ये हमें दिखाया जा रहा है कि इस्लामाबाद में लोग यही करते हैं. Yeah. Sure they do. But बहुत मजे का ड्रामा था. I really enjoyed it. खत्म हो जाती है एपिसोड यार, मुझे पता भी नहीं चलता. मुझे इतनी चिढ़ चढ़ती है सीरीज. I feel like इसी वक्त दूसरी एपिसोड आए और मैं देखूं उसको, you know. Yes. There's a lot happening and it's amazing that they fit all of that into one episode. So well done then. Let's move on to हम कहाँ के सच्चे थे. हम कहाँ की सच्चे थे भी. तो आई थिंक जब से किस खत्म हुई है हमारी डिस्कशन, हमारी बातें खत्म नहीं हुई हैं उसके ऊपर. महरीन और छक्के पे छक्का हैट्रिक हो गई है भाई. हैट्रिक हो गई है. लेकिन जो डैमेज हुआ था पहले, do you think that this has covered up for all the damage in the past few episodes? तो कल मैंने ट्विटर स्पेसेस पे ये बात बोली थी और हमने इंस्टाग्राम की पोस्ट पे भी लिखा था, and I would like to explain it here also that I feel it's really unfair to us as audiences. It's so unfair. पहली बात है. एंड सेकंड, आई फील कि इट इज सो सैड टू सी कि इतनी क्रिएटिव, इतनी टैलेंटेड टीम है जो उसमें इन्वॉल्व है, एंड इवन दे फेल प्रे टू दिस थिंग कि 3 एपिसोड्स ड्रैग कर दो यार, ड्रैग कर दो, और उसके बाद एक एपिसोड में सब कुछ भर दो मसाला और बोलो ओ ये कुछ हो गया. यू नो, आई जस्ट फील डिसअपॉइंटेड बिकॉज जो 3 एपिसोड्स आपने पीछे दिखाई उसको 1.5 में कर देते, या फिर ये जो डिस्कवरी थी उसको सब चीजों को एक साथ दिखाने के बजाय आप उसको ओवर द लास्ट 1.5 एपिसोड पे ले आते. तो क्यों करते हैं? हमें पिछले 3 हफ्ते से रुलाने की और हमें ये सब बोलने की और हमें इतनी इस प्रोसेस है कि ये ड्रैग हो रहा है, क्यों हो रहा है, करने की क्या जरूरत होती है? बिकॉज आई डू नॉट थिंक कि ड्रामे में पिछली एपिसोड में तो स्पेशली या उससे कुछ ऐसा हुआ पहली 2 एपिसोड में कि कोई बड़ा कोई इम्पोर्टेंट ट्विस्ट आया with regard to the story, script or the characters. आप उन दोनों को एक में कर सकते थे. Right or wrong? Am I right or wrong, शाजिया? बिल्कुल. I completely agree कि कर सकते थे, क्योंकि अभी देखो जो थेरेपिस्ट का हिस्सा है वो आपने दिखाया, फिर आपने महरीन का भी दिखाया, फिर आपने शब्बो का भी दिखाया, फिर कप्स की बात कुछ अधूरी रह गई बट काफी हो गई. अब थेरेपिस्ट का आई वुड एक्चुअली हैव लाइक टू सी 2 सेशंस, क्योंकि वो एक सेशन में इतना ज्यादा नहीं उगलवा सकते कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. अच्छा देखो, ये कल भी ट्विटर स्पेस पे जब बात हुई थी तो तुमने कहा था कि आई विश कि ये दिखाएं कि थेरेपिस्ट कैसे हैंडल कर रहा है. सो मैं थोड़ा सा वहां तुमसे एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है हर केस, हर डिटेल जो होती है वो डिफरेंट होती है. एंड अगर ड्रामा ये दिखाए, आई एक्चुअली डू नॉट वांट एनी ड्रामा टू शो कि थेरेपिस्ट एग्जैक्टली क्या कर रहा है. मे बी दे कैन शो कि वो 2 दफा जाके मिल के आ रहा है, या ऐसी इंपॉर्टेंट बात है कि थेरेपी पे जाना जरूरी है. इट इज ओके टू गो फॉर थेरेपी हेल्प्ड यू, थेरेपी डिड दिस, ये दिखा दे. बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो मुझे लगता है कि हर केस पे डिपेंड करता है. और अगर वो दिखा दे तो ऐसा ना हो लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो ओवर द काउंटर लेते हैं ना, पैनाडोल के भी जुकाम हुआ तो ले लो, तो वो भी ये करना ना शुरू कर दें कि हमें ड्रामे में दिखाया था, हम भी यही करना शुरू कर देते हैं. तो मुझे लगता है ये तो नहीं दिखाना चाहिए कि किस तरीके से वो हैंडल कर रहा है. बट यस, विजिट जस्ट टू शो कि वो थेरेपिस्ट से कुछ ना कुछ कर रहा है, थेरेपिस्ट इज गाइडिंग, मे बी ये दिखाना चाहिए था. एंड आई आल्सो फील शाजिया, आपने ना the effects of the therapy should have been shown. Exactly, yeah. और now this ये पिछली किस्त में दिखाना चाहिए था. ये पिछली किस्त में या तो सच, या तो आधा सच दिखा देना चाहिए था, या फिर थेरेपिस्ट का पिछली किस्त में दिखा देना चाहिए था. क्योंकि आपने इस वक्त असवद की कैरेक्टर के साथ ज्यादती की है. आपने इतना सडन चेंज लाया है कि देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो राजी नहीं है असवद के कैरेक्टर को माफ करने, या असवद के कैरेक्टर को सेकंड चांस देने, या असवद के कैरेक्टर में कुछ भी उसको जस्टिफिकेशन देने के लिए, क्योंकि आपने एकदम से सब चीजें दिखाई हैं. अगर आप एक स्लो में या थोड़ा सा प्रोग्रेशन में दिखाते तो लोग भी साथ साथ देख रहे होते कि ओ असवद ने ये किया है, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव कर दिया, असवद ने अब ये किया है, थोड़ा पॉजिटिव कर दिया. आपने उसको नेगेटिव 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 कर करके फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इतने नेगेटिव्स को कैसे आप 3 पॉजिटिव से निगेट कर सकते हैं? तो आपने आई जस्ट फील कि असवद की कैरेक्टर के साथ ज्यादती की है. आई टोटली अग्री. देखो अब जैसे पहले दिखाते कि वो महरीन के साथ थोड़ा क्लोज होता, वो महरीन का ख्याल रख रहा है, सो वहां से फिर थोड़ी सी अवेकनिंग होती. फिर वो जाता थोड़ा सा नानी से बात करता, नानी थोड़ा सा, नानी का भी एकदम से पलट दिखाया है.
नानी को पहले नहीं पता था कि ये तुम्हारे, हमको तो नजर आ रहा था कि भाई स्त्री के लिए, दवाइयों के लिए, नानी शुड हैव बीन अ मोर ग्रे कैरेक्टर। अगेन वो एकदम से पलटी है। अब शब्बो का मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने सब कुछ बता दिया उस वक्त, एंड आपने पुलिस को नहीं बताया कि मशल ने कहा था कि गोलियां पीसो और डालो, ये तो पहले ही सॉल्व हो जानी थी ना मिस्ट्री, कि आप चुप रही उस वक्त। असफर ने क्यों नहीं पूछा उससे कि भाई तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया ये शायद सब अगले कुछ? वाले में बताएं, शायद अगले वाले में बताएं। अगर पुलिस को कहा गया था कि चुप रहो, तो मामू ने तो नहीं कहा था, बिकॉज मामू हिमसेल्फ गॉट अ रेवलेशन कि अच्छा ये हुआ था, फिर पुलिस वाला अपने आप से क्यों चुप रहेगा? सो अनफॉर्चुनेटली वी आर लविंग द डायरेक्शन एंड द एंगल्स एंड द वे द फ्लैशबैक्स आर बीइंग शोन, but there are things missing over there and they are continue to be missing right now. तो कब्स के बारे में क्या ख्याल है आप, before we come to असफद? वो कंफ्यूजन है, उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती। मैं अब अगली किस्त का इंतजार करूंगी कि क्या है। तो वही हमारी 2-3 पॉसिबिलिटीज थी कि या तो वो उसने डाला, लेकिन क्योंकि बीच में एंड में महरीन आ गई थी तो महरीन से वो कप मिक्स हो गए, या फिर जो तुमने बोला था कि शब्बों को रियलाइज ही नहीं हो रहा कि कितनी इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दो शी नोज के जो मशल ने उससे बोला कि ये ताकत की दवाई है वो सही नहीं है, बट मे बी शी डिडंट रियलाइज कि ये इट कुड लीड, आई मीन कौन सा हो सकता है कि मशल उसको मारेगी। सो शी माइट हैव थॉट कि ये इससे बस कुछ कर रही है। शी कुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड कि मशल उसको मार देगी, या मशल उसको मारने की तैयारी कर रही है, या चाहे 2 दफा बनी हो, which you suggested. Yes, yeah. So we don't know. There is, उन्होंने थोड़ा सा छोड़ा, या सॉरी हमें नहीं समझ आई, मे बी लोगों को समझ आ गई, उन्होंने थोड़ा सा ओपन एंडेड छोड़ा है, जो आई थिंक अगले उसमें बताएंगे, Yeah, the revelation for me in this drama, क्योंकि जो असद को पता था वो हमें तो पता था, but for me the revelation was Rabia, which we had discussed. I till today had assumed कि मशल ने अपने आप को मारने की कोशिश करी थी, and she had placed it in such a manner, positioned it कि वो इल्जाम महरीन के ऊपर आए। मैंने अभी तक ये नहीं सोचा था कि मशल ने महरीन को मारने की कोशिश करी थी। Did you feel that? हाँ, मुझे तो शुरू से ही था कि या तो वो ये करेगी, या फिर अगर नहीं होगा तो वो इस चीज के लिए भी रेडी होगी कि वो अपने आप को कुछ भी कर ले टू पुट महरीन इन ट्रबल। इनफैक्ट आई वुड हैव थॉट मोर ऑन दोस लाइंस, बिकॉज जो वो असफद से कहती है ना, उससे पहली एक या दूसरी किस्त में जब उसके कमरे पे जाती है उन दोनों की मंगनी के बाद, तो वो कहती है कुछ भी कर लो, किसी भी किस्मत पे मैं महरीन को तो तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारी जिंदगी में आने ही नहीं दूंगी, ये तो तुम लिख लो। तो जिस तरीके से उसने थ्रेटन किया था ना, उससे मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती थी उससे, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी है कि अगर वो, ये भी मुझे थोड़ा सा नहीं, ये लूप होल लगता है जो आगे जाके शायद ये लोग एड्रेस करें, अगर वो महरीन को मार देती तो खुद कैसे बचती फिर? अगर वो महरीन को मार देती, महरीन का किसी को फिक्र नहीं थी, महरीन मर जाती, nobody would have asked, अगला पिछला कोई नहीं पूछता, वो चाय पी के मर गई, कुछ भी हो गया, nobody cared about her. I think this is, और वो इतनी ज्यादा अपनी हेट में और उसमें रेज में थी कि उसको वो खुद भी कर सकती। A couple of things that we picked up on Peter's faces that I wanted to address it. I'm sure you did too. Someone से हम महरीन के कैरेक्टर के बारे में राबिया जब बात कर रही थी कि महरीन क्यों ये सब ले रही थी असफद से, क्यों लिया, किसी ने कहा कि कोई एजुकेटेड लोग भी होते हैं, और हमने देखा हमारे इर्द गिर्द ऐसी खवातीन हैं जो बहुत इंडिपेंडेंट होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन फिर भी वो अब्यूज ले रही होती हैं। किसी ने ये कहा कि महरीन को आदत हो गई थी। आई लाइक दैट पॉइंट, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी अब्यूज ही ली थी, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, तो उसको आदत थी कि वो असफद से भी अब्यूज ले। I really liked this point a lot. What did you think about it? हाँ, इट मेड सेंस, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन मैं फिर उसी बात पे आऊंगी जो मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि महरीन के कैरेक्टर को जिस तरीके से दिखाया गया है वो मेरे लिए हमेशा खड़ी होती है। वो उसको पढ़ती थी और वो खड़ी होती थी, पढ़ती थी और खड़ी होती थी, तो वो चीज मुझे मिसिंग लग रही थी। उस चीज को फिर ये जो गैप था उसको किसी तरीके से स्क्रिप्ट में या ड्रामे में आप हल करते या एड्रेस करते कि हाँ वो पहले करती थी लेकिन अब ये हो गया, तो उसके अंदर से ये चीज खत्म हो गई। जो होती है, बहुत से बहादुर लोग नहीं कर पाते, दे कांट स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स एट सम पॉइंट इन टाइम। जिंदगी में कुछ हो जाता है, कोई चीज उनकी वो जो स्ट्रेंथ होती है उसको तोड़ देती है। बट आपने यहाँ पे उसको उस तरीके से नहीं दिखाया। हाँ, पुलिस वाला पूरा वो था, लेकिन उसके बावजूद वो खड़ी थी, उसने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी, उसने सब, वो तो सफान ने जब उसको वो किया तो तब वो शादी पे भी हुई। तो मुझे लगता है कि जो उसने कंप्लीटली गिव अप किया वो जस्टिफाइड मुझे उसके कैरेक्टर से नहीं लगता, मुझे स्क्रिप्ट ने जस्टिफाई नहीं किया।
Okay, then we see Mehreen. Before I come to Aswad's backstory and whether there was anything or not, I love that scene. I think we all loved it. कि जब वो शुरू में उसका suicide का होता है कि वो कहती है कि तुम तेजाब पी लो और तुम ये कर लो और पीछे Umair Rana also makes an appearance again. Again we had mentioned on Twitter Spaces कि थोड़ा सा कहीं एक वो आना चाहिए था trigger warning, क्योंकि जब आप बाकी चीजों के लिए करते हैं, आप शराब के लिए करते हैं या आप स्मोकिंग के लिए करते हैं, तो यहाँ होना चाहिए, बिकॉज तेजाब एक ऐसी चीज है राबिया जो बच्चे करते हैं. यस, यू वांट टू से समथिंग? तो कंप्लीट करो, फिर मैं बताऊंगी. मैं कल भी इसका जवाब देना चाहिए थी, बात हुई तो आई वांट टू आंसर दिस. तुम बात करो. मैं कह रही हूँ तेजाब का जो आइडिया आया था ना, ये बड़ा स्कैरी आइडिया था जो एक्चुअली यंग लड़कियां कर चुकी हैं. दे हैव डन इट एंड एक्चुअली हमने एक आर्टिकल भी लिखा था, यंग क्रिकेटर थी, शी वाज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ हरासमेंट एंड शी एक्चुअली उसने पी लिया तेजाब एंड शी वाज इन द हॉस्पिटल. तो ये बहुत एक स्कैरी चीज थी. फिर जब उन्होंने एंड बट नाउ गोइंग बैक टू द ड्रामा डायरेक्शन वाइज कि जो व्हेन ही मेड एन अपीयरेंस, द फादर मेड एन अपीयरेंस, और वो जो गई है खिड़की पे और वो जो रोई है एंड कॉल्ड आउट, it was just superb. Both of them together did a superb performance, especially because वो शीशे के through कर रहे थे. You have to understand that also. It was very artistically and creatively done, and hats off to Farooq Prince साहब और उमैर अहमद. उन्होंने लिखा होगा और उन्होंने execute किया होगा. I'm assuming कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने मेहरीन के अंदर जो दो sides चल रही थी कि मर जाऊं नहीं मरूं, उसको represent किया और बहुत ही इमोशनल लिखा है. मेरी आंखों में वाकई आंसू थे जब वो चीख अपने बाप को पुकारती हुई कमरे से बाहर निकलती है. And I think Myra did such an amazing job at that point. बहुत you could it seemed so real, Mehreen's pain and the way she was, you know, सालिया को पकड़ के कह रही थी ये भी मुझे मारना चाहता है, ये तो मशल के साथ है, और बाप को ढूंढ रही थी. It was really good. तुम्हारे सवाल के तुम्हारा जो पॉइंट है उसमें और जिन लोगों ने बोला, मैं ये कहना चाहूंगी, जब स्मोकिंग की ट्रिगर वार्निंग आती है ना, तो स्मोकिंग इज नॉट अ सरप्राइज. स्मोकिंग इज नॉट समथिंग, ये नहीं होता कि वो स्मोक करेगा नहीं करेगा. यहाँ मुझे लगता है कि ट्रिगर वार्निंग नहीं दे सकते थे बिकॉज देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन कि वो करेगी नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी. अगर वो ये पहले से दे देते तो फिर शायद वो चीज हो नहीं पाती. हाँ, जब उन्होंने कर दिया था तो फिर यार तेजाब का जब था तो फिर लिख दिया जाता कि प्लीज इसको घर पे नहीं करें या ये बड़ा डेंजरस है. लेकिन वो जो डैमेज होना है फिर भी वो हो चुका होता, जो तुम कह रही हो. अगर किसी के जहन में ख्याल आना होता तो वो आ चुका होता. सो आई वुड से कि वो तेजाब तक नहीं जाते, सिर्फ उसको खुद मतलब इतना स्पेसिफिक नहीं जाते कि उसको अच्छा छलांग लगा दो, आग जला लो, तेजाब, फिर ये नहीं करते, यू नो, ये नहीं करते. और उसको उधर तक ही रखते वेयर शी एक्चुअली यू नो डज समथिंग एल्स, वहां तक रखते. तो फिर शायद तुम लोग जो बात कर रहे हो वो थोड़ी हैंडल हो जाती कि वो लोगों को आइडियाज नहीं देती. Again, it is going back to our discussion forever and ever कि आपके पास एक रेटिंग होनी चाहिए ड्रामों पे, because again तेजाब क्योंकि उसने हाथ में लिया तो the impact was much more. And even I didn't know. I thought he पी लेगी and she will die and Aswad will suffer for the rest of his life. तो मुझे भी नहीं पता था, and they had to show that maybe to do that. But we had a backstory to Mehreen and the writer and the director reminded us कि वो क्यों इस point पे पहुंच गई है. असवद की बैक स्टोरी मुझे नहीं समझ आई है. Yes, the therapist talked to him. Yes, the therapist made us all realize कि अगर आप किसी को मारे भी नहीं, अगर आप किसी को ऐसा कोई काम नहीं करें, आप फिर भी अब्यूज कर सकते हैं. असवद के ऊपर रियलाइजेशन अभी डॉन हुई है, हमें थोड़ा बहुत, we had been talking about it, लेकिन that still does not justify. और are we saying that पाकिस्तानी मर्द, देसी मर्द ऐसे होते ही हैं और ये असवद थोड़ा सा और उसको पुश कर दें तो ये इस ब्रिंक पे पहुंच जाता है. And so it's not, he doesn't need a backstory because he's just an abuser and abusers don't have a backstory. Is that what we are saying? So मेरा I hope मुझे सारे points याद हो और मैंने जो मैं बोलना चाह रही हूँ मैं बोल सकूँ प्रॉपर तरीके से. असवद एक तरीके से, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ और कल भी बोला था और दोबारा रिपीट करूँ, एक तरह से बहुत से मर्दों को रिप्रेजेंट करता है जो किसी भी वजह के बगैर, या जब उनमें ट्रांजिशन आता है, ऑफिस में कुछ सही नहीं हुआ, बिजनेस खराब हो गया, शादी अच्छी नहीं चल रही, ससुराल से कोई इशू, तो वो अपना गुस्सा जो होता है वो अपनी बीवियों पे निकालते हैं और इस तरीके से करते हैं. और असवद की कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने वही दिखाया है कि जरूरी नहीं है कि मारा जाए तभी अब्यूज हुआ जाए. तो एंड बहुत से जो मर्द होते हैं जो हम कहते हैं कानों के कच्चे होते हैं, they believe what they see in front and they never, or they choose the easy way out and they say नहीं, हमें नहीं बीवी के हक के लिए खड़ा होना, जो माँ कह रही है उसी पे बिलीव करके इसको झाड़ दो. तो मुझे लगता है कि ये साइड बहुत से मर्दों की असवद ने रिप्रेजेंट की. लेकिन अगर आप असवद को देखें तो इट्स अ ड्रामा, ठीक है, एंड असवद इस ड्रामे में एक स्पेसिफिक सिचुएशन में है. मैं अगेन उसी बात पे आऊंगी, असवद
को कभी से शुरू से उन्होंने बुरा नहीं दिखाया। एक इंसान का प्राउड होना, एक इंसान का थोड़ा सा इगोइस्टिक होना डज नॉट मेक हिम अ बैड पर्सन, कैन मेक हिम अ पर्सन जिसको थोड़ी में भी गाइडेंस की जरूरत है। उसको आप एक बुरा इंसान या अब्यूजर नहीं कह सकते हैं आप उसको। तो असफद का हमें ट्रैक कहीं भी वो नहीं दिखाया। एक सिचुएशन हुई जो जिससे उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, उसको बताया गया एक चीज जो उसने बिलीव किया। अब आप कह सकते हैं कि वो बुद्धू है, वो कानों का कच्चा है, बट टू कॉल हिम अ हैबिचुअल अब्यूजर इज नॉट फेयर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो मुझे अभी तक, शायद मैं अब तक खुल के नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था ड्रामा आगे क्या करेगा, बट क्योंकि अब उन्होंने दिखाया कि थेरेपी है, उन्होंने दिखाया कि असफद में चेंज आ रहा है, आई वांट टू से इट कि असफद को मैं कंप्लीटली ब्लेम नहीं करती हूँ। मतलब मेरे लिए असफद इतना नेगेटिव नहीं है, बिकॉज देयर वाज अ सिचुएशन जिसमें, देखो असफद एक चीज को बिलीव करता है, वो बिलीव करता है कि ये चीज हुई है और महरीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फिर उसमें वो फैक्टर जो है हम बात कर रहे थे, हो सकता है उसको अपनी गिल्ट है और वो अपनी गिल्ट को फेस नहीं कर पा रहा है, एंड ही इज ब्लेमिंग इट on Mehreen being the same weak guy जो हम अब तक बात कर रहे हैं that असफद is, but that does not make him an abuser जिसको आप बोले कि माफी नहीं मिल सकती इसको, तो ये तो पता नहीं कब से बुरा इंसान है। नहीं, वो एक सिचुएशन में था, उसमें भी आपने दिखाया कि वो करता था and he would regret and he was trying to control। एंड दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगी, आई एम सॉरी बट स्क्रिप्ट ने थोड़ी ज्यादती की है असफद के साथ। यहाँ पे आप उसको थोड़ा मीडियम दिखाते, यू वर ट्राइंग टू शो कि अब्यूज किस तरह होता है, लेकिन आपको इतनी हद तक नहीं ले जाना चाहिए था कि आप उसको एक साइको टॉर्चर करने वाला इंसान दिखा देते। तो फिर हम सब भी थोड़ा सा ना एक और रियलिस्टिक सिचुएशन आ जाती, बिकॉज देन दैट कैरेक्टर वुड हैव बीन मोर एक्सेप्टेबल एंड मोर बिलीवेबल फॉर अस। अब तो असफद को आपने बिल्कुल कॉर्नर में ही कर दिया है, जो जिसकी कोई बैक हिस्ट्री नहीं है सच, लेकिन वो एक अब्यूजर बना दिया। अब लोग उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। सो दिस इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। Okay, so two things. Number one, was he trying to, this is a question I'll, but you can answer later, trying to drive her towards suicide, which is what the therapist said, कि अगर उसने किया था, okay, because I don't think he was, क्योंकि जब उसकी हल्की सी चोट भी लगी थी किचन में, तो he was shaken, तो he said मेरा ये मतलब नहीं था, वो सिर्फ उसको बुली कर रहा था, ठीक है। Number two, असवद माइट नॉट बी अ हैबिचुअल अब्यूजर, लेकिन असवद का क्योंकि उन्होंने, अब जो अगर हैबिचुअल अब्यूजर दिखाती तो फिर वो स्टोरी के अंदर आता, उसको दिखाती कि उसकी आदत है कि वो यही करता, वो हर किसी के साथ यही कर रहा है, अपनी अम्मा के साथ भी यही कर रहा है, लेकिन वो ढके छुपे कर रहा है, सबके सामने नहीं कर रहा। आई एग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट। असवद को एक काफी केयरिंग, स्पेशली बचपना जो इसका दिखाया है वो अच्छा है, बट दे हैव पुश्ड हिम टू दैट ब्रिंक। नाउ असवद being असवद, he is with a person like Mehreen is a scary combination। या तो कोई ऐसी लड़की होती जिसकी बैक स्टोरी नहीं होती, महरीन इज डैमेज्ड हरसेल्फ। अब महरीन को आप एक ऐसे आदमी के साथ रख दें जो देसी मर्द से भी 2 हाथ आगे हैं, is not fair, and then we as audiences we wanted to see them together, but now we don't want to see them together। तो फिर आप वो हैबिचुअल अब्यूजर ही दिखा देते उसको, आप उसको नहीं दिखाते कि वो शुरू में अच्छा इंसान। हम कम बैक, वी आर कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि स्क्रिप्ट में कुछ कैरेक्टर्स के साथ आपने ज्यादती की है, और आपने उसको जो एक बड़ा रियलिस्टिकली आप चीजों को पोर्ट्रे कर सकते थे, आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर बैठे इन चीजों पे। अब अगेन अगर आप पहली 2 किस्तों में या पिछली 2 किस्तों में दिखा देते कि उसको महरीन के बारे में सच्चाई पता चली है, एंड ही इज बिकम अ लिटिल सॉफ्टर टुवर्ड्स महरीन, वो उससे कपड़े नहीं छीनती, मासी को देता, तो असफद की कैरेक्टर की ट्रांजिशन एंड उसकी अच्छाई हमें नजर आ रही होती और हमें होप मिलती, लेकिन आपने नहीं किया। अब कोई असफद से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज आपने वो ट्रांजिशन ही नहीं दिखाई ना, आपने एक रात में चेंज दिखा दिया है, एंड व्हाइल वी आर रूटिंग फॉर इट वी से ओ वाओ शुक्र है कि ये हुआ कि थेरेपिस्ट दिखाया ये क्या, बट इट इज स्टिल अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। It is still a problematic situation. One thing I want to give problematic के पर बात करती हूँ, tomorrow no matter who is saying that he's okay, a very personal thing, if I had a younger sister or daughter, I would not want her to be near Aswad before treatment or after treatment. Unfortunately, I have made up my mind कि that, and I don't know, अगर हम किसी थर्ड पर्सन में रखते हैं हमें बड़ा आसान होता है ये कहना कि नहीं happily ever after they can, but in real life you wouldn't want that person near someone you love despite therapy. You would want him to have his healing but not there. Number 2, I wanted to give a shout out to Usman Mukhtar, जब वो गाड़ी में बैठे थे and जो आंसू निकल रहे थे, that sense of regret, it is not easy to show that, and the direction also, the camera was full on him, it was beautifully done.
despite everything we are talking about, we felt a little bad for him at that time. Did you? No, I didn't feel bad because I think inside I was already a little bit pro Aswad. मैंने पहले भी बोला है, मुझे उसकी बिहेवियर में कुछ चीज समझ आ रही होती थी और मुझे लगता था कि जो जितनी बैशिंग असद के कैरेक्टर को हो रही है उसमें स्क्रिप्ट का बहुत कसूर है, और मैं उसको आइसोलेशन में नहीं देख रही थी. मुझे लगता है कि सब लोग उसको आइसोलेशन में देख रहे थे कि ये अब्यूजर है, ये अब्यूजर है. ये इन माई माइंड इट वॉज ऑलवेज कि वो एक सिचुएशन फेस कर रहा है जिसकी वजह से वो ये बिहेव कर रहा है. नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, और ये बात तुमने बोला है कि you wouldn't want to give a second chance to Aswad. So मैं इन चीजों पे बहुत मैं सोच रही थी. तो मैं कह रही थी कि जो लोग हैबिचुअल अब्यूजर्स नहीं हैं और एक सिचुएशन में आके गलती कर बैठते हैं, तो क्या उनको कभी फिर सेकंड चांस नहीं दिया जाए? ये सवाल मेरे एक जहन में आ रहा था. दूसरा मेरे जहन में आ रहा था, तुमने एक और बात बोली. अच्छा, उसके बाद मुझे ये भी है कि उन्होंने असवद को ये दिखाया कि वो उसके साथ बुरा कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया कि असवद की एक स्ट्रगल भी चल रही है, वो कश्मकश में भी है, वो क्वेश्चन भी कर रहा है. सो फॉर मी दैट वाज अगेन अ पॉजिटिव थिंग. या तो वो एक ऐसा दिखाते कि वो बैठा हुआ है एंड ही इज यू नो वो मजे कर रहा है कि ओ आज मैंने मेरीन को ऐसे टॉर्चर किया और ये, बट नहीं, वो खुद भी खुश नहीं था, वो खुद भी बेचैन था, और वो एवरी टाइम कुछ करता था तो उसको आके आप दिखाते थे कि उसका रिग्रेट. तो मेरे लिए ये भी एक उम्मीद की किरण है असवद के कैरेक्टर में. एंड थर्ड पॉइंट, अगेन आई सेड इट वॉज एन आइसोलेटेड सिचुएशन जहां उसका दिमाग भरा गया था, जहां उसकी अपनी बेवकूफी की वजह से वो सच को नहीं जान सका, उसने लोगों की बातों पे यकीन किया, अब उसके सामने सच है, सामने है. सो गिवन दीज थ्री, आई होप आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग एल्स, क्या इन सब की वजह से हम एक इंसान को रिपेयर होने का, एक इंसान को दोबारा एक दूसरा चांस नहीं दें? इमेजिन कि आप उसको बोल रहे हैं इसको माफी नहीं मिलेगी, इसको हटा दो, इसको मेरीन की जिंदगी से निकाल दो, ये तो साइड पे खड़ा होकर इसकी थेरेपी कराओगा. वो इंसान सारी जिंदगी रिग्रेट में रहेगा कि ये लड़की, जो कि उसको शायद वो पसंद भी करता है, आई बिलीव दैट. तो मैंने उसके साथ ये बुरा किया और मुझे कभी चांस नहीं मिला कि मैं उसके साथ इस चीज को दोबारा ठीक कर सकता. नाउ अगेन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वेरी क्लियरली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो हैबिचुअल अब्यूजर है, जिसमें कोई रिग्रेट नहीं है, जिसमें रिमोर्स नहीं दिखाई गई है, जो सिर्फ अपनी बीवी नहीं अपने घर में हर किसी के साथ बदतमीज. हम उन सिचुएशंस की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही मैं उन सिचुएशंस की बात कर रही हूँ जहां आपने 2 दफा किसी को चांस दे दिया और तीसरी दफा आप दोबारा सोच रहे हैं. नहीं, मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रही हूँ जहां आपको उम्मीद की किरण एक नहीं 3-4 जगह पे नजर आ रही है. तो मुझे ऐसा लगता है, और मे बी मेरीन को क्योर करने में असवद का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है. और यही बात जो उन्होंने थेरेपी की दिखाई, थेरेपी के थ्रू असवद अपने आप को डिस्कवर करे और उसको ये बताया जाए कि तुमने मेरीन को कैसे डील करना है, और मेरीन की थेरेपी साथ साथ स्टार्ट हो. क्योंकि मेरीन बहुत जख्मी है, लेकिन मेरीन को ठीक करने कौन आएगा, कौन करेगा? हु इज देयर? अगर आप निकाल देंगे असवद को सिचुएशंस में से, सफान तो नहीं आएगा, उसको तो वो तो शादी कर रहा है या कर चुका है. देन या फिर आप ये कह रहे हैं कि हाँ, ये भी कह सकते हैं कि उसकी थेरेपी हो, वो अपनी जिंदगी वो गुजारे उस पे, विच इज ऑल्सो ओके. बट अगर एक मोहब्बत की अपॉर्चुनिटी उसके पास है जहां उसको जिंदगी का साथी मिल सकता है, जो उसकी हेल्प कर सकता है, who is sorry for what he did and can be a good companion in future after maybe some time, तो why not उन दोनों को एक चांस दिया जाए. This is my take and I'm sorry. Do not bash me. No. You see, because you are going by the fact कि असवद का एक बैकग्राउंड दिखाया था जिसमें वो ऐसा नहीं था. So उसके ऊपर भी कुछ चीज, he was not habitually like that, और उसकी ऐसी कोई डैमेज गुड्स नहीं है. ठीक है, अब अगर मैं अपनी स्टेटमेंट को चेंज करूं, मैं कहूं that if I had a son like Aswad or if I had a younger brother like Aswad, what journey would I want? So then I would say, and which I said in a couple of episodes before in Drama Gab, कि फिर अगर उसकी थेरेपी हो तो उसको आप प्रोबेशन पे रखें. You see how he is behaving with Mehreen, and you see, because देखो at the end of the day Mehreen does want him. और हम जो अपनी women emancipation में और सब में हम कह देते हैं ना कि no, he's really bad for her, blah 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 blah. At the end of the day, yes, abusers do go back to the people whom they are abusing, but he's not one of those abusers. He is not an actual abuser. Yeah. Okay. Yeah. So then we have to see therapy, and because we want a way out for both of them, इसका एक open end होना चाहिए. Yes, आहिस्ता आहिस्ता they can rediscover each other, अगर वो दोनों यकीन से जाएं थेरेपी पे और वो करें और वो काम करें.
ओके, अब जो मैं कहने yeah. वाली हूँ शायद उसके लिए बहुत बैशिंग आए और उसके लिए शायद आप भी मेरे से, लेकिन unless they are going to show something कि असफद के पास में कोई बहुत बड़ी चीज थी या वो था जिसकी वजह से असफद ये कह रहा था, फॉर मी असफद की थेरेपी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उसको सिखाएं कि वो मेरीन के साथ कैसे डील करे. असफद फॉर मी, एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ सेइंग दिस, बट फॉर मी असफद से एक गलती हुई है. असफद मेड अ मिस्टेक. There is a difference between somebody who's going through psychological issues and there is a difference between एक बंदा जो जिससे गलती हो जाए. मेरे लिए असफद से गलती हुई है. Yes, उसने उसकी बातों में आया, वो करना चाहिए था, but for me असफद से गलती हुई है. Yes. Okay, I don't agree with you over here, Rabia, It's because I feel असफद से गलती हुई है. हाँ बोलो. नहीं तुम कंप्लीट करो बात. असफद से गलती हुई है, लेकिन असफद का जो रिएक्शन था ना उस गलती को डील करने के लिए वो बड़ा एक्सट्रीम था. He literally drove her to psychosis and to a point of suicide. तो हम सबको गुस्सा आता है, हम सब कुछ गलत समझते हैं किसी के, लेकिन उसने जिस तरह उसको टेरराइज किया है ना, that is not what I would want anyone in my house to do. So Aswad needs therapy for that, to know how to handle his anger, because those moments can come again. एक रिलेशनशिप में तो ये 50 मोमेंट्स आते हैं. ये नहीं आएगा कि तुमने किसी को कत्ल किया, बट और आते हैं, और आपकी एक आदत हो जाती है कि आप उस इंसान के साथ इसी तरह रिएक्ट करेंगे हर दफा. So he needs therapy for me. How to handle Mehreen is another part, but he needs therapy to know how to. I see अगर हम अपनी but then again you could be right also, and yes maybe families में मे बी फिर थेरेपी पे हर चीज के लिए आपको कंसल्ट करना पड़े, बिकॉज वी सी थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस इन फैमिलीज, एंड हम देखते हैं कि लोग इसी तरीके से इतने लोग जिनको आप इतनी मोहब्बत करते होते हैं और वो कभी पैसे के पीछे, कभी रिलेशनशिप के पीछे, कभी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में वो ऐसी हरकत करते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं और आप कहते हैं यार ये वही शख्स है जिसको हम जानते हैं, क्या इस शख्स के ये एंगल्स भी हैं. तो मैं इस चीज को इस तरीके से देखती हूँ. दो भाइयों में जायदाद पे अगर, अब पता नहीं मैं सही बात कह रही हूँ नहीं कह रही हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग व्हाट्स कमिंग इन माय माइंड राइट नाउ. प्लीज आपने जवाब देना, आप डिस्कशन कर दीजिएगा, ये मेरी जजमेंट कॉल नहीं है ना, फाइनल कॉल है. बट जो जहन में बात आ रही है मैं बोल रही हूँ, जब दो भाई आपस में लड़ते हैं जायदाद पे, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं शाजिया, क्या किस एक्सटेंट तक जाके ये कहानियां तुमने सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी, मैंने भी देखी सुनी है, मशहूर है. बिजनेस में पार्टनर्स के दरमियान क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड जो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं वो क्या क्या एक दूसरे के साथ कर देते हैं. तो ये जो सब चीजें होती हैं ये ह्यूमन बिहेवियर है मुझे लगता है, जो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी वर्स्ट साइड को निकाल के लाता है आगे. मुझे असफद के साथ ये सिचुएशन यहाँ लगती है, बट यस आई विल ऑल्सो एग्री, एंगर मैनेजमेंट अगर है जो मैं पहले नहीं दिखाई, अगेन वही बात, वो पहले नहीं दिखाई ना, मैं फिर बोलती एंगर मैनेजमेंट अगर मुझे पहले दिखाई दी होती, पहले भी एंगर बचपन में भी फ्लैशबैक दिखा देते, थोड़ा सा दिखा देते बचपन में भी, उमैर अहमद ने लिखा, आई डोंट नो, या वो नहीं दिखा. आपने उसके कैरेक्टर को ना थोड़ा सा बेहतर मुझे लगता है डील करना चाहिए था. आप इट्स नॉट वेरी रियलिस्टिक टू, और अब हम सब वो क्योंकि कॉन्वर्सेशंस ऐसी हो गई कि थेरेपी होनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए, हम लोग असफद को सेकंड चांस देने के लिए तैयार ही नहीं है, इस डर से कि हम ये बोल देंगे कि ओ इसने अब्यूज किया था, ही कांट बी गिवन अ सेकंड चांस बिकॉज वी आर क्या बोलेंगे, हम ठप्पा लगा रहे हैं अब्यूजर्स पे, क्योंकि अब्यूज की इतनी बात हो रही है आजकल, इसलिए. But we are not, Shazia, and we need to differentiate between the two situations. And we need, and एक और बहुत important point, and we need to do it. Why? Because we need to show कि जो आम एक मर्द भी है ना, वो बीवी के साथ कभी कभी बदतमीजी या अपनी बहन या माँ के साथ भी करता है, but he's not an abuser, or he doesn't need to have a backstory. He just need to realize that he cannot do this. You get it? He cannot do it. But Mehreen might not be able to stand up to him. You see, because Mehreen herself is. मैं Mehreen की बात exactly नहीं कर रही हूँ. I am talking about Aswad's character, who does not have a history of anything like that. But we saw him flipping like this and doing things जो we were all surprised and like ये कहाँ से. तो मैं उस बात पे कह रही हूँ कि ये भी एक एंगल आपने दिखाया है कि एक बेटा जो बहुत मोहब्बत करने वाला हो सकता है, वो भी जब वो भी किसी बात पे तो उसके लिए भी एक कॉल है ना, वेकअप कॉल है फॉर हिम, फॉर मेन, कि
you can't do that, because then that does not justify what you are doing. It does not आपको उस और औरतों के लिए भी कि recognize करें. मुझे ये maybe I'm not able to explain my point clearly. Okay, but going back to your initial point, बात यही है कि abusers को, और हम सब जानते हैं abusers हमारी society में हैं who are carrying on relationships, हमेशा बताते, हमें पता हो जाता है, we know कि अच्छा बचपने में ये चीजें तोड़ा करता था, गुस्सा आता था तो ये करता था, तो बाद में बात तो इसका नहीं है, again flashback में नहीं है, but because of this conversation which has gone on for so long, because the narrative is not giving us a clear picture, we are talking about Aswad trying to defend him and find ways that they can be together, because we can't find that reason inside the narrative. इसलिए कि वो abuser है कि वो abuser नहीं है, and so far we feel he is not. And it तुम्हारी बात बड़ी अच्छी है कि हम हर किसी को एक ही bracket में नहीं डाल सकते, because if you take Aswad and you put an abuser who is an abuser, there is a difference. जो Aswad की backstory में. There is a difference, and again I do not want to say again कि आप abuse बर्दाश्त करें या आप ज़्यादती बर्दाश्त करें, लेकिन शादी बड़ी important चीज होती है, बड़ी delicately उसको deal करना पड़ता है, तो dramas are very important to teach you right thing. Now ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने ड्रामे के थ्रू दिखाई कि आप थेरेपी लें अगर आप दोनों के दरमियान मसले हो रहे हैं. I always say that अगर आप खुश नहीं हैं या आपको लगता है कि वो वाली बात नहीं है आपकी रिलेशनशिप में, and it doesn't have to be abuse, please go and seek counseling. It is perfectly okay. Why wouldn't you want your relationship to be good? And again वही बात थेरेपी इन्होंने तो दूसरे लेवल पर पहुंचाई कि अगर आप अब्यूज कर रहे हैं, अगर आप बार बार अपनी बीवी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो जाइए देखिए क्यों कर रहे हैं आप बार बार बुरा, you know. And राबिया, हम में से जितना हमने abusers देखा है, हमने ऐसे भी couples देखे हैं जो 10 साल पहले हमें मिले थे, who were not happy with each other, and 10 years later they are happier with each other. So things have worked out with them. Either they have sought treatment or they have changed the way they, because they love each other so much, they have actively changed the way they think. I have met such people. So I think that हमें ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर कोई, I didn't get that, तो बीच में freeze हो गई थी. I haven't met any people like this. या तो बेचारे चले जा रहे हैं. Okay, I've seen 3 types. या तो वो अलहदा हो गए हैं, या वो बहुत खुश हैं, या फिर वो चले जा रहे हैं, compromise कर रहे हैं, बस. No, I've seen a couple, but बहुत कम, very few. लेकिन अभी हम असफद और महीन को इसी ब्रैकेट में डाल रहे हैं, आपको पता है ना? हम कह रहे हैं हो सकता है कुछ. किस ब्रैकेट में? हम कह रहे हैं, we are saying that they can improve. We are saying they have hope. उम्मीद पे दुनिया कायम है. For me, it's a hopeful. I'm hopeful, and I'm willing to give a second chance to Aswad. I'm doubtful. Yeah. Okay. ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर. आप अपना व्यू जो है अबाउट असफद एंड अबाउट सिंथियाहन एंड अबाउट दिल मोमिन जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिए. वी वुड लव टू हियर कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सुन के आपका क्या व्यू है. बहुत दफा आप लोग नए एंगल्स लेकर आते हैं, सो वी विल बी वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू इन आवर कमेंट्स. थैंक यू और खुदा हाफिज.